सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय लक्ष्मण हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान बोलो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय लक्ष्मण हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम नमो भगवते रामचंद्राय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमत्तां वरिष्ठ वातात्मजं
वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. So we bow down at the lotus feet of Sri Hanumanji, who is as swift as the mind and as fast as the wind, who is the master of the senses and honored as his excellent intelligence, learning and wisdom. He who is the son of the wind god and the chief among the Vanaras, and to that messenger of Sri Ram, I take refuge prostrating before him. Jai Shri Hanuman Ji ki Jai. Hare Krishna. So we welcome all the devotees for today's session on Sri Hanuman Ji as requested by His Grace Rameshwar Kanai Prabhu. So to fulfill his wish, I said, okay, I will try to serve whatever we can do. So for this 1 hour, we will try to speak a little bit on the glories of Sri Hanuman Ji. So we seek the blessing of Sri Hanuman Ji, Lord Ramchandra Ji, and Srila Prabhupada, that let they guide our intelligence and we can speak something for our own purification and for attracting the heart of Lord Sri Ram. Jai Shri Ram. So I'll start with saying one very nice shloka, which is like this, which comes in Ram Raksha Sutra. It says, Bharjanam bhavabijanam arjanam sukha sampadam tarjanam yamadutanam ram rameti garjanam. So like we chant, we do this garjana called Jai Shri Ram, and you can see behind me this logo is also there, Lord Ramchandra Ji with bow and arrow, Jai Shri Ram. So this verse which says Bharjanam bhavabijanam arjanam sukha sampadam tarjanam yamadutanam ram rameti garjanam. So Bharjanam bhavabijanam. Bharjanam means it actually, okay, this verse talks about 3 effects which it has. So Bharjanam bhavabijanam. So bhavabij is very, very difficult proposition. That means we are in this material only, and this bhav means the material world, and bij means from where it actually sprouts. And generally bij, when seeds are roasted, okay, then it loses its potency to grow. So we all are unfortunately thrown in this bhav sagar. हम सब इस सागर में फेंक दिए गए हैं, and we are suffering a lot because of being in this bhav sagar. So although we know that we are not this body, we are the soul, and the nature of the soul is, what is the nature of the soul? Sat Chit Anand. Sat Chit Anand. And what is the attribute of the soul? Eternal servant of the soul. And parcel of Lord. Yeah, that is same. That is Jiva Swarup Bhai Nitya. But it has one very nice quality. It is called Anandamayo Bhyasat. Anandamayo Bhyasat means it is always pleasure seeking. It's always prasanna. Brahma Bhuta Prasannatma na sochati na kankshati. But we are always sochati and kankshati, both. That happens every day, every moment to us actually. So Anandamaya Bhyasat. So we are pleasure seeking entity. We are always happy, blissful, eternal, full of knowledge, full of bliss. But because we are in this bhav sagar, we are suffering. So Bharjanam bhava bijanam. So okay, what is Ram Rameti? Let me tell you. Ram means Lord Ramchandra Ji. You know the name of Lord Ramchandra Ji. Oh, if it is okay, then fine, Prabhuji. Thank you very much, because there are some senior citizens who have joined. So I will speak little bit in Hindi also. Thank you for permitting me. So राम भगवान रामचंद्र जी का नाम है, आप जब जानते हैं. और रामेति मीन्स एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लॉर्ड राम. भगवान राम से जुड़ा कुछ भी, जैसे भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, उनके पेरिफेरनेलिया, एवरीथिंग इज कॉल्ड रामेति. देयरफॉर लॉर्ड शिवा सेज राम रामेति रमेति राम रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने. सो वो लेने से क्या होता है कि ये भव बीज जो है वो नष्ट हो जाता है पूरी तरह से. इट इज रोस्टेड.
Bharjanam bhava bijanam and arjanam sukha sampadam. And what happens that you get wealth. Now sometimes some people will say, अरे भगवान का नाम लेने पे कहाँ wealth मिलती है? So you get spiritual wealth for sure. Material wealth also you may or you may not get. So sometimes अभी ऐसा होता है, I had given one class to some of my corporate friends called what is the best investment, and we actually concluded saying bhakti is the best investment, because very small return, very small investment and big return. That is what everyone is looking for. So like Ajamil took one name Narayan and he got Vaikuntha. So investment was very, very small. One name Narayan and you get Vaikuntha actually. And then obviously, there were many parameters of investment which I spoke, that how, without too much of time, you get good return very quickly, without much effort, without much investment. So some people think that, Arey Prabhuji, sometimes when we come in bhakti, it looks like our capital gets eroded. हमारी पूंजी खत्म हो जाती है, जो था वो भी चला जाता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं ऐसा शास्त्रों में कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, है क्या नहीं? आपने देखा रहेगा ये। तो जो भगवान की भक्ति करने लगता है तो समटाइम्स द वेल्थ इज गॉन, बट ऑब्वियसली समटाइम्स यू गेट टू मच वेल्थ बाय वर्शिपिंग द लॉर्ड. और इतिहास गवाह है कि देयर आर मेनी डिवोटी हु आर लाइक, they worshipped the Lord and they got a tremendous amount of wealth, which nobody can even imagine. It is beyond. But we are talking about spiritual wealth mainly. So arjanam sukha sampadam, you get arjanam means you get, arjan karte hain aap kya, sukha sampadam, you get peace and you get wealth also, happiness also. And Lord Krishna has given this peace formula in Bhagavad Gita. तो खाली शांति 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 ऐसा चिल्लाने से शांति नहीं मिलती है. शांति कैसे मिलती है? भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति. कि शांति का जो फॉर्मूला है, प्रभुपाद बोलते हैं द पीस फॉर्मूला इज गिवन इन भगवद गीता, वेयर कृष्णा सेज दैट व्हेन यू नो मी और यू नो कृष्णा, then actually you will achieve peace, real peace. So arjanam sukha sampadam, then tarjanam yamdutanam. Tarjanam means भगा देता है, यमदूता नाम. किसको भगाता है? यमदूतों को. तो आप जानते हैं कि यमराज जो कि एक महाजन है, 12 महाजन में से, उन्होंने अपने यमदूतों को कहा है कि जिस भी व्यक्ति ने तिलक धारण किया है और कंठी माला पहनी है, कभी उसके पास मत जाना और मेरे पास उसको मत लेके आना. So, आप सबको अजामिल की कथा पता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय हमारे पास हमेशा कम रहता है, तो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा नहीं बनाऊंगा मैं. तो अजामिल का जब कि अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई. घड़ी मौत की सर पे जब उसके आई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई. तुरंत खुल गए उसको वैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे. So our poets, our devotees are so nice that within this 4 line he has given the complete story of Srimad Bhagavatam of अजामिल. इतना पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि अजामिल अधम था वो, लेकिन आपने उसकी बिगड़ी बना दी. और जब उसके घर सर पे मौत आई तो उसने क्या किया? भगवान नारायण का नाम नहीं लिया, अपने बेटे नारायण का नाम लिया, लेकिन फिर भी आपने उसका उद्धार कर दिया. तो जब अजामिल को यमदूत पकड़ने के लिए आए और जब उसने ये नाम लिया नारायण, तो वहां पे विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूत ने तर्जनम यमदूता नाम, उन यमदूतों को भगा दिया. बोला भागो यहाँ से, यू कैनॉट क्लेम दिस इज अवर्स. बोला ऐसे कैसे? बोला इसने नारायण का नाम लिया. बोला अरे नारायण तुम्हारे भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो वो अपने बेटे नारायण का नाम लिया. बोला तो भी क्या हुआ? सांकेत्यम पारिहास्यम हेलनम वा. भगवान का नाम इतना पवित्र है कि सांकेत्यम मीन्स टू इंडिकेट, आप किसी को इंडिकेट करते हुए लो. पारिहास्यम किसी के मजाक उड़ाते हुए लो, और हेलनम वा किसी को डांट के भी भगवान का अगर नाम लिया जाए तो भगवान का नाम पवित्र करता है और आपको वैकुंठ तक पहुंचाने की शक्ति रखता है. तो कहा इसके लिए तुमको मैं नहीं ले जाने दूंगा. मैं आपको एक और छोटी कथा बताता हूँ कि एक बार एक व्यक्ति घने जंगल में से गुजर रहा था और उसके सामने एक जंगली सुअर आ गया. वन वाइल्ड बोर अटैक्ड हिम, एंड वो कोई यवन साइड से होगा. तो जब उस बोर ने, व्हेन द बोर अटैक्ड हिम, ही स्टार्टेड शाउटिंग हराम हराम हराम. But
by shouting this haram also he got Vaikuntha. Why? Because this word haram contains Ram. तो इस हराम में राम है, तो भगवान भावग्राही जनार्दन, उन्होंने वो राम को पकड़ लिया और उसको अपने पास में बुला दिया, है क्या नहीं? तो जो भी हराम हराम करता है उनको भी फायदा मिलेगा। और हम लोग तो दिराम भी करते हैं, तो दिराम में भी राम है, पर ज्यादा हंसने मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिराम में फंसेंगे तो भगवान से शायद दूर चले जाएंगे। तो ठीक है, हमको कमाना चाहिए और जो हमको मिलता है भगवान की सेवा में उसको लगाना भी चाहिए, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ओके, सो दे ड्राव आउट यमदूतास and then this Yamduta went to Yamraj and told that we were thinking that you are the controller, is there anybody else also? And then he actually tells so many things to Yamduta. Obviously that's not the subject matter of discussion today, but one important point I'll say, he says dharmam tu sakshat bhagavad pranitam, that whatever Krishna has said, that is dharma, all other thing is adharma. And what Krishna has said, anybody can tell me? Surrender unto me. Krishna has said one very important thing, that is man mana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru. That's what Krishna, that is dharma. Anyway, we will go बहुत ज़्यादा डिटेल में और मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो इसके लिए ये करता है, तो राम रामेति गर्जनम, so we start our class by chanting Jai Shri Ram, Jai Hanuman. Okay, so why sometimes people go to watch a movie? Okay, I will not say that why you or I go for watching movie. I assume our devotees don't watch. Obviously sometimes they watch some important inspirational movie for the preaching purpose or something, but generally we avoid. But generally why people go for watching a movie? Quickly tell me the reason. One by Entertainment. Okay, one person, entertainment. Okay, very nice. What else? Enjoyment. Okay, what else? Relieving stress. Okay, let me ask question in a different way. What you would like to see in the movie? What do you want to see in the movie? जो हमारे मन को अच्छा लगे। ये तो जनरल आंसर है। ओके, लाइक मैं मूवी जानना है, मूवी की स्टोरी जानना है मेन पर। क्या आप है सब बहुत बड़े भक्त है, बहुत ऊंचे स्तर के, तो शायद आप लोग नहीं बोलेंगे। लेट मी टेल, वी गो टू वॉच मूवी फॉर रोमांस। रोमांस के लिए जाते हैं कि नहीं? क्या देखना चाहते हैं मूवी में? इसलिए रोमांटिक मूवी सबसे ज्यादा फेमस है। बाय द वे, एक जमाना ऐसा आया था जिसके अंदर रोमांटिक मूवीज ही बनती थी और रोमांटिक मूवी ही चलती थी और रोमांस के ऊपर ही सब कुछ होता था। तो एक ये कारण है कि लोग रोमांस देखने के लिए मूवी में जाते हैं। बट हु कैन बी मोर रोमांटिक देन कृष्णा? टेल मी। कृष्णा से ज्यादा रोमांटिक व्यक्ति कौन होगा? जिसके इशारों पर करोड़ों गोपियां डांस करती है, जिसकी 16,108 पत्नियां है। सोचो, किसी में भी इतना दम नहीं है। एक बार कोई व्यक्ति प्रभुपाद के पास गया और बोला कि कृष्ण भगवान की इतनी सारी पत्नियां थी, 16,108, क्या हमारी एक दो से ज्यादा नहीं हो सकती है? तो प्रभुपाद ने कहा, एक पत्नी जो तुम रखे हो ना, वो भी तुम्हारा चोरी है, वो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, वो भी कृष्णा की प्रॉपर्टी है। ओके और लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होता है कि 16,008 कृष्णा की थी। उनको ऐसा लगता है हमारा कोई नहीं है, हम क्या करें, हम ऐसे ही फिर रहे हैं। एनीवे, सो रोमांस के लिए हम लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए। दूसरा और क्या? पिक्चर की स्टोरी जानने के लिए। ओके, स्टोरी जानने के लिए। एक्शन कॉमेडी एक्शन एक एक बोलो, सब बोल दोगे तो यार। Music. हाँ, म्यूजिक, एक्शन और Proji learnings. Very nice. What else? Dialogue. What New else? characters. What else? Dress ups. हम ज्यादा मूवी पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हॉरर देखने के लिए भी कोई जाता है ना। Some people like horror movies, right? Some people like action movies. Some people like emotions. लोग बोलते हैं अरे ये इमोशनल मूवी है, बहुत they move actually. बहुत सारी इमोशनल मूवीज भी हमारे भारत में हुई है। ये कुछ चैट पे कुछ आ रहा है, पर एनीवे आई एम नॉट एबल टू सी इट, सो नो प्रॉब्लम। सो ओके, एक्शन के लिए अगर देखना है तो हमारे शास्त्रों में कौन सा एग्जाम्पल है? फटाफट बोलिए एक एक क्षण में। एक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? रामायण एंड महाभारत। रामायण। नरसिंह भगवान क्या स्टोरी? एक्शन, फुल ऑफ एक्शन। ठीक है। इमोशंस के लिए क्या देखना है? रामायण।
राम सीता अपहरण क्या? फुल ऑफ इमोशंस. हॉरर के लिए All महाभारत. the Rakshas attack in done on Hanuman ji and on I mean regular basis. ओके ओके. और कुछ स्पेसिफिक? नरसिम्हा अवतार भी काइंड ऑफ. नरसिम्हा अवतार में कुछ हॉरर नहीं है. There is nothing horror in नरसिम्हा अवतार. Yes. Anyway, I will tell. भागवतम, चलो मैं आपको क्लू देता हूँ. भागवतम में हॉरर है. तुम सोचोगे यार भागवत तो अमलम पुराण, उसमें जो क्या कृष्णा को मारने आए थे वो सारे तो वही है ना, राक्षस है, राइट? ना ना बाबा, राक्षस का हॉरर वो एक्शन है बाबा, वो हॉरर नहीं है. हॉरर और एक्शन में फर्क समझता नहीं आप लोगों को. अरे 5th कैंटो भागवतम, नरक का वर्णन, 24 नरकों का वही मैं बोलने वाली हॉरर है. थी. चलो मैं आगे बढ़ता हूँ. फिर कॉमेडी. कॉमेडी का एग्जांपल दो मेरे को शास्त्रों से. Krishna's childhood pastimes, there are many. ओके फाइन फाइन. आप है ना जवाब देके आपका माइक है ना म्यूट करते जाइए, नहीं तो फिर आपके किचन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं, वो सब मुझे सुनाई देता है. तो ठीक है. कृष्णा's childhood pastimes, very nice. What else? वो हनुमान जी और अंगद, जब अंगद जी गए थे पूंछ अपने ऊंची करके बैठ गए थे, और हनुमान जी ने भी वहां पे फल वगैरह खाए थे, तोड़ फेर की थी, तो रावण की हंसी उड़ाई थी उन्होंने, वहां पे कॉमेडी किया था. वेरी नाइस. सो ये कॉमेडी में भी क्या होता है कि जरा सटल कॉमेडी एंड समटाइम देयर आर ग्रॉस कॉमेडी. तो जो बहुत एकदम ऐसे धीर गंभीर लोग होते हैं, उनको ऐसा सटल कॉमेडी में भी बहुत ज्यादा मजा आता है. जैसे प्रभु जी ने बोला फल खाए थे, कोई सोचेगा यार फल खाने में क्या कॉमेडी है करके ना, लेकिन एनीवे होता है. जैसे महाप्रभु एक बार वेंकट भट्ट को बोले कि क्यों लक्ष्मी को एंट्री नहीं मिला रासलीला में, और वो हंसने लगे. सो दैट वाज अ जोक एक्चुअली, क्रैक्ड बाय चैतन्य महाप्रभु. बट मैं आपको बताता हूँ, रामायण से एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक बार रामायण में क्या हुआ कि जो वानर थे ये रामचंद्र जी के लिए लड़ाई करते थे. तो अलग अलग टाइप के, अलग अलग वैरायटी के रावण बंदर थे. और अगर आप लोगों ने किसी ने बंदर के साथ अगर ट्रीट किया हो, आपका वास्ता रहा हो या डीलिंग रहा हो, तो आपको पता चलेगा कि बंदर को हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट है. बिकॉज कौन से क्षण वो क्या करेगा नोबडी कैन प्रेडिक्ट. वो कुछ ना कुछ करते रहता है. बंदर कभी शांति से बैठ नहीं सकता. कभी ये उठाएगा उसका निरीक्षण करेगा, वो उठाएगा उसका निरीक्षण करेगा, इसको खोलेगा उसको बंद करेगा. उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि इसका शेड्यूल बहुत टाइट है. ब्रह्मांड का सबसे बिजी व्यक्ति है ये. लेकिन वो सब चीज करता है काहे के लिए? खाली सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए. तो इफ somebody can manage monkeys, then he must be God. Not one or two. Millions of monkeys were there in Lord Ram's army and different varieties of monkeys. तो एक बार एक एकदम सूखा लकड़ा, सूख पतली जैसा, सींग जैसा एक बंदर था. वो बहुत डिंगे मार रहा था बड़ी बड़ी. he was actually telling many things. तो एक बार उन्हें सबको, तो पहले दिन में क्या होता था, लड़ाई होती थी, रात में सब लोग अपना आराम करते थे, सो जाते थे. they would follow code of ethics even in the war. अभी तो क्या है कि रात को भी वो लोग बमबाजी करते हैं. this is all like foolish things. So वो मीटिंग चल रही थी और ये बंदर डिंगे मार रहा था. उसने बोला पता आज मैंने क्या किया? बोला बता क्या किया? बोला अरे आज मैं जब युद्ध के अंदर गया तो मेरे सामने एक रावण का मुष्टंडा आ गया. बड़ा एकदम बलवान व्यक्ति, 10 फुट का आदमी मेरे सामने आ गया. तो बोला मैं डरा नहीं, मैं लपक के छलांग मारा और छलांग मार के उसके ऊपर कूद गया. अरे उसकी छाती के ऊपर मैंने प्रहार किया और उसके हाथ में से तलवार गिर गई. मैंने वो तलवार को उठाया और वो तलवार को उठा के घुमा के उसका एक हाथ काट दिया. सभी बंदर लोग बोले अरे बाप रे, तूने उसका एक हाथ काट दिया? बोला हाँ. फिर मैंने ऐसा घुमा और मैंने उसका दूसरा हाथ काट दिया. सबने बोला अरे बाप रे, तूने क्या कमाल किया. और बोला फिर ऐसा हटा के मैंने उसका एक पैर और काट दिया, फिर दूसरा पैर काट दिया. तो ऐसा सब बोल रहा था. तो एक बंदर था, वो समझदार था, उसने बोला अरे इतना मेहनत क्यों किया, तूने उसका गला क्यों नहीं काट दिया? Why you did not behead him? So बोला अरे वो तो किसी और ने पहले ही काट दिया था. समझ में आया? ये कॉमेडियन बंदर था. Anyway, so everything is there in so our Shastra, which is Ramayana, Mahabharata and Srimad Bhagavatam,
सो ऐसे कहते हैं कि रामायण धर्म शास्त्र है, महाभारत कौन सा शास्त्र है? सो इफ आई से रामायण इज धर्म शास्त्र कैटेगरी, सो महाभारत कर्म हाँ कर्म कर्म शास्त्र नहीं, कर्म शास्त्र नहीं है। सोचो, मैं खाली आपको सोचने का थोड़ा टाइम देता हूँ। नीति, नीति शास्त्र। Not really, not exactly. There are many Artha? things. See, prominent, everything will come in all shastra, huh? But राजनीति शास्त्र, huh? राजनीति शास्त्र, It is व्यवहार शास्त्र, व्यवहार. Okay, Ramayana is dharma shastra, Mahabharata is व्यवहार शास्त्र, and Bhagavatam is which shastra? Bhakti. Yes, bhakti. Yes, definitely bhakti, you can say. There is something more to it. Vedic. Oh, everything is Vedic, Anita Mataji. So everything is Vedic. प्रेम पुमर्तो महान, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, प्रेम पुमर्तो महान, ये प्रेम शास्त्र है, प्रेम शास्त्र। भागवतम इज प्रेम शास्त्र। ओके, सो एनीवे, कमिंग बैक टू हनुमान जी, बिकॉज टाइम ऐसे ही भागते जाता है इफ आई गो इनटू डिस्कशन। सो एनीवे, नाउ कमिंग बैक टू हनुमान जी। जय हनुमान। हनुमान जी इज अवर ओरिजिनल सुपर हीरो। हाउ मेनी सुपर हीरोज यू नो? You have Batman, Spider-Man, He-Man, whatever, so Shakti-Man, Shakti-Man, you have Shakti-Man, He-Man, Batman, and so many men are there. But there is one original man called Hanuman. Who is the original of all superheroes? Hanuman. तो आपके बच्चे अगर बाजू में बैठे तो उनको बताओ कि हमारा ओरिजिनल मैन जो है वो हनुमान है, हनुमान। सो हनुमान, हालांकि हनुमान नाम का भी मैं व्याख्या बीच में करूंगा अगर टाइम मिलेगा हमको तो। बट ऑल दिस सुपरफिशियल सुपर हीरोज डोंट लास्ट फॉर लॉन्ग। थोड़े टाइम के लिए आते हैं, मैचो मैन बन के फिर चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी इज लास्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, हनुमान जी इज वेरी वेरी स्पेशल। तो एक बार जैसे मैं चर्चा कर रहा था, बता रहा था कि रामायण में बहुत सारे कांड है, अयोध्या कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, ऐसा ऐसा करके। तो बाल कांड में भगवान रामचंद्र जी की बाल लीला का वर्णन है, अयोध्या कांड में अयोध्या लीला का वर्णन है, अरण्य कांड में उनका। तो ऐसे सुंदर कांड में क्या, सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? माई रेगुलर पीपल वेट फॉर 2 minutes, just wait, my Bhagavad Gita class people just wait. So why Sundarkand is called Sundarkand? Hare Krishna Prabhuji, because Hanumanji's mother Anjali actually had named him Sundar. Very nice, wonderful. So wonderful. That is how the name came as Sundarkand. Yes, and mainly in Sundarkand the Leela of Hanumanji is there. The jump of Hanumanji is there in Sundarkand, and therefore it is called Sundar. Very nice, thank you. And Hanumanji is such a special personality that Krishna also uses Hanumanji in many things. You may know the story, some may not know. तो मैं इसको हिंदी में क्विकली 1 minute में खाली स्टोरी बताता हूँ कि भगवान कृष्ण भी हनुमान जी को कई बार यूज किए हैं। और जनरली जब किसी भक्त को बहुत अपने आप पे गर्व महसूस होता है तो भगवान हनुमान जी को यूज करते हैं। तो एक बार भगवान के 3 भक्तों को बहुत ज्यादा घमंड हो गया। कौन कौन वो 3 भक्त थे? आपने स्टोरी सुनी है, सो यू प्लीज टेल मी द नेम। कौन कौन थे? सुदर्शन चक्र। अर्जुन नहीं बाबा, सुदर्शन चक्र इज वन, करेक्ट। सेकंड हनुमान, सत्यभामा देवी, सत्यभामा एंड गरुड़। ऐसे तो उन्होंने बहुत किया। उन्होंने भीम का भी गर्व चूर किया था अपनी पूंछ को करके। लेकिन ये मैं स्टोरी बताता हूँ कि एक बार कृष्ण ने तो गरुड़ को बोला कि जा हनुमान को बुला के लेके आ, मुझे कुछ काम है। और सुदर्शन को बोला कि मैं अंतर कमरे में बैठा हूँ सत्यभामा के साथ, किसी को अंदर मत आने देना, बी एज ए गार्ड। और वो हनुमान के पास गरुड़ जी गए उड़ के, और हनुमान जी उधर राम राम का नाम ले रहे थे। उनको बोला कि चलो, भगवान कृष्ण ने बुलाया। तो हनुमान ने कहा अच्छा तुम आगे चलो, मैं आता हूँ पीछे। तो बोला अरे तुम कैसे जाओगे? आई एम विथ स्पीड ऑफ फेरारी,
तुम अयोध्या में हो, वो द्वारका में जाने का है, कितना टाइम लगेगा, चलो मेरे साथ मेरी फ्लाइट में बैठो। हनुमान ने कहा नहीं नहीं तुम चलो, मैं आऊंगा। तो गरुड़ को लगा ये क्या बंदर पहुंचेगा, पर गरुड़ा केम बैक एक्चुअली। तो गरुड़ जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि हनुमान जी भगवान कृष्ण के सामने खड़े हैं। तो गरुड़ को लगा अरे ये इतना जल्दी कैसे पहुंच गया। तो हनुमान जी ने केवल एक जंप लगाई, अयोध्या से सीधा द्वारका पहुंच गए और गरुड़ को उड़ के आना पड़ा। तो गरुड़ का पूरा प्राइड जो था, दैट आई एम द फास्टेस्ट कैरियर, वो खत्म हो गया। फिर बाद में हनुमान जी के सामने, कृष्ण के सामने थे, तो हनुमान जी ने पूछा कृष्ण से, बोलो भगवान क्यों बुलाया। तो बोला कुछ नहीं, बस तुमसे मिलने की इच्छा हुई, तुम्हारे दर्शन करने की इच्छा हुई, इसलिए बुला दिया, कोई बात नहीं तुम जा सकते हो। लेकिन कृष्ण ने देखा कि हनुमान के गले में कुछ अटका हुआ है, जैसे बंदर लोग कुछ खा के गले में डाल देते ना यहाँ पे। तो कृष्ण ने कहा कि हनुमान ये गले में क्या है। बोला ओ भगवान सॉरी, हाँ गले, मुंह में से सुदर्शन चक्र निकाला। बोला ये सुदर्शन मेरे को अंदर नहीं आने दे रहा था आपसे मिलने के लिए, बहुत कोशिश किया मैंने, फिर मैंने उसको पकड़ के अपने मुंह में डाल दिया। तो सुदर्शन का जो प्राइड था कि भगवान मुझे यदा यदा ही धर्मस्य, मुझे यूज करते हैं सबको मारने के लिए, तो वो उसका प्राइड चला गया। और हनुमान जाते जाते मुड़ के बोले भगवान बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। बोले बोलो। बोले ये दासी कौन बैठी आज आपके साथ में। सत्यभामा को झटका लगा, क्योंकि सत्यभामा सोच रही थी कृष्णा इज माय हैंड पैक हस्बैंड। जब उसने पारिजात फूल मांगा था तो एक फूल के लिए उन्होंने पारिजात वृक्ष इंद्र के साथ लड़ाई करके कृष्ण लेके आए थे, तो उनको लगा कि ही इज अंडर माय कंट्रोल, शी थॉट लाइक दैट। तो फिर कृष्ण ने कहा मरवाएगा क्या, ये दासी नहीं है तो मेरी पटरानी है। तो हनुमान बोले नहीं, आप तो राम हो और आपके साथ लक्ष्मी और सीता मैया अच्छी लगती है, ऐसा करके उन्होंने चूर कर दिया। एनीवे, तो जब भगवान छोटे से थे, तो मैं भगवान की बाल लीला के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। आप सबको वैसे इन जनरल तो हनुमान जी की स्टोरी पता है, लेकिन हनुमान जी एक तरह से पवन पुत्र है, एक तरह से केसरी नंदन है, और एक तरह से शिव जी का भी इनकारनेशन है। ओके, सो शिव जी एक्चुअली कम्स टू सर्व लॉर्ड रामचंद्र जी इन द फॉर्म ऑफ हनुमान जी। ओके, एंड ही इज ऑल्सो इन वन सेंस हाफ ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम। तो ऐसी भी एक कथा है कि जब भगवान रामचंद्र जी के जन्म के समय जब वो खीर निकला था, तो गरुड़ उसको झपट के भाग गया था, और उसका एक भाग जो है वो अंजना के पास में चला गया था। सो हनुमान जी इज हाफ ब्रदर ऑफ लॉर्ड राम। हनुमान जी इज ऑल्सो द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। हनुमान जी इज सन ऑफ वायु एंड ऑल्सो सन ऑफ केसरी। केसरी ऑब्वियसली बिकॉज अंजना के पति है वो, और पवन इसलिए कि वो जो शिव जी का जो अंश था वो पवन देव ने लाके और अंजना मैया को दिया था। तो अंजना माता अपना तपस्या कर रही थी और उनको कोई संतान नहीं थी, तो शिव जी का ये जो अंश था ये लाके उन्होंने दिया था, और फिर हनुमान जी का जन्म हुआ। और हनुमान जी बहुत बलशाली थे, क्योंकि ऑब्वियसली पवन के पुत्र है, केसरी के पुत्र है, शिव जी का अवतार है, तो बहुत नटखट थे, बहुत शरारती थे। तो बचपन में इतना शरारत किया करते थे हनुमान जी कि बहुत लोग परेशान हो जाते थे उनसे। तो एकदम बिल्कुल छोटे से बालक थे और अपने पालने में हनुमान जी थे। तो पालने में से उन्होंने ऊपर देखा तो उनको एक लाल कलर का फ्रूट दिखाई दिया। आप सब जानते हैं वो फ्रूट क्या था, वो सूर्य था। तो वो सूर्य दिखाई दिया तो उनको लगा अरे लाल कलर का फ्रूट है, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। और ऐसा करके हनुमान जी उड़ने लगे, छोटे से बालक से, और वो उड़ने लगे। सोचो बिकॉज क्यों उड़ने लगे, हर कोई बालक नहीं उड़ता है, बिकॉज ये पवन पुत्र है बाबा। तो उड़ने लगे पवन पुत्र, और उड़ के और सीधा 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 फ्रूट खाने के लिए आगे गए। पर वो फ्रूट नहीं था, वो तो सूर्य का गोला था। लेकिन पूरा स्पीड से हनुमान जी उड़े, और उड़ के उन्होंने क्या किया, और सूर्य को निगल लिया। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जातन तारो, देवन आनी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। So then Indra, he actually came there, and Indra came and as he actually picked up the Surya, he also saw Indra coming on Airavat. And all of you know what is the color of Airavat?
What color? White. White. So Airavat is white, very huge elephant. So he thought, Hanumanji thought that just now I ate red fruit, now I will eat white fruit also. So he came and started attacking Indra. Indra became very frightened actually. And उसने क्या किया, अपना वज्र फेंका, जो कि बहुत बहुत खतरनाक वेपन है. और जैसे ही वज्र फेंका, वो हनुमान के इधर डोडी पे आके लगा. चिन्ह, इसको हनु बोलते हैं संस्कृत में. और उस चिन्ह को उसने तोड़ दिया और हनुमान जी बेहोश होते हुए गुलांटी खा के और नीचे गिरने लगे आसमान में से. और जैसे वो नीचे गिर रहे थे, पवन देव आए वहां पे और उन्होंने हनुमान जी को अपने बाहों में उठा के एंड ही फ्लू इन वन केव एंड ही सक्ड ऑल द लाइफ एयर, ऑल द एयर फ्रॉम ब्रह्मांड से झुके, और सब लोग धाड़ धाड़ करके गिरने लगे, मरने लगे. और फिर पता चला कि पवन देव बहुत क्रोधित हो गए हैं. तो एवरीवन वेंट टू ब्रह्मा जी and told Brahma ji that Brahma ji, we made a mistake. This Indra actually hit Hanuman, and Hanuman is the son of Pavan Dev. Pavan Dev has actually withdrawn all the air. So please do something. Then Brahma ji appears in front of Pavan Dev and says, "Oh Pavan Dev, please forgive the mistake of Indra, and please release all the air, otherwise everything will die." And then he says that in exchange of that, when you release the air, we will bless your son. We will bless Hanuman ji, और हम सब हनुमान जी को आशीर्वाद देंगे. ओके, तो सारे के सारे देवता आके और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया. बहुत सारा आशीर्वाद उनको मिला. तो अगर आपको कुछ याद है तो एक दो फटाफट बोलिए, नहीं तो आई विल टेल यू व्हाट आशीर्वाद हनुमान जी गॉट. ओके, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र से कोई क्षति नहीं होगी. हाँ, ब्रह्मा जी ने ये बोला कि कोई क्षति नहीं होगी. ओके, एंड कोई भी प्रकृति का कानून जो है वो हनुमान जी पे अफेक्ट नहीं करेगा. वेरी नाइस. व्हाट एल्स? ओके, आई विल टेल द नेम ऑफ द डेमीगॉड, यू टेल इन केस इफ यू रिमेंबर. सूर्य ने उनको क्या आशीर्वाद दिया? सूर्य ने क्या आशीर्वाद दिया? गुरु बनने के लिए तैयार हुए. नहीं, सूर्य गुरु बने, लेकिन उन्होंने कुछ आशीर्वाद उस समय दिया था कि आग से तुमको कुछ जलन नहीं होगी. You will not be burnt in the fire. इसलिए जब पूंछ पे आग लगाई हनुमान जी के तो उनको कुछ नहीं हुआ. एनीवे, विश्वकर्मा ने उनको क्रिएटिविटी का बूंद दिया. धन्वंतरी ने उनको हीलिंग टच दिया. That if Hanuman ji touches anybody, he will heal actually. And Brahma ji also offered one very good thing, which please remind me little later. What Brahma ji actually gave him the आशीर्वाद, वो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के. एक और आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया था और वो मैं आगे जाके बताऊंगा. और उन्होंने कहा था कि इस आशीर्वाद को अगर कोई पहचान लेगा वो तुम्हारा मालिक होगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा था. तो थोड़ा आगे मुझे याद दिलाना. आई एम जस्ट कीपिंग समथिंग फॉर लिटिल सस्पेंस, थोड़ा टू क्रिएट के. ब्रह्मा जी gave one more important, and then Indra actually gave him this name Hanuman. He said that I actually broke your chin, you will be famous, you will be known as Hanuman. ऐसे हनुमान जी के बहुत सारे नाम है, बजरंग बली, मारुति नंदन, एंड बहुत सारे ऐसे हनुमान जी के नाम है. बट हनुमान जी, because he got so much power, he became restless. क्योंकि वैसे ही obviously he appeared in monkey this thing, so he was very restless. तो बहुत सारे साधुओं को वो तकलीफ देते थे. कोई साधु अगर गायत्री कर रहा है अपना नदी में जाके, तो वो he will go down and he will pull the feet of the sadhu, and sadhu will fall and he will get disturbed in gayatri. And some sadhu are meditating on the cave, he will actually lift the cave itself. पूरा का पूरा गुफा उठा लेते थे. And like that he will do so many. Sometimes he'll put some sadhu upside down and he will do so much नटखट. He will do पढ़ाई वढ़ाई कुछ करते नहीं थे हनुमान जी. मौज मस्ती मजा करते थे. And because he had so much of power, because all this power were given by demigods to Hanuman ji, he would misutilize. So one point we need to understand, that power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Obviously not in case of Hanuman ji. I am just making this sentence that sometimes किसी को power मिलता है ना, तो बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी को पावर मिलना चाहिए, नहीं तो बहुत बार गड़बड़ हो जाती है. तो हनुमान became very restless and started doing all those things. So एक बार एक साधु ने उनको श्राप दे दिया. कहा, हे हनुमान, जिस शक्ति पे तुमको इतना गर्व है, वो शक्ति सब तुमको विस्मरण हो जाएगी, तुम भूल जाओगे उसको, ऐसा करके. और फिर ऑब्वियसली उनके माँ बाप ने वापस प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये शक्ति सब भूल जाएंगे, लेकिन जब इस शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होगी हनुमान को और कोई उनको रिमाइंड करेगा, तो ये शक्ति उनको वापस दोबारा प्राप्त हो जाएगी. ओके,
So I am taking the story forward. So Hanumanji became very sober from that day when he got the curse, and immediately he came to his mother and told, "Mama, Mama, I want to go to school." माँ बोली क्या हो गया मेरे बेटे को, स्कूल जाने की बात कर रहा है. He said, I want to go to school. Please, admit me in some school. But Hanuman ji is Hanuman ji. उसके लिए कोई ordinary school भी बना नहीं है. Then he is admitted in the school of सूर्य देव. हाँ, सूर्य की स्कूल में है. So सूर्य के पास वो जाके बोलते हैं कि मेरे को आपसे ज्ञान ग्रहण करना है. और सूर्य बोले कि देखो मैं तो दिन रात घूमते रहता हूँ. I am on my chariot and I take round. मैं तो घूमते रहता हूँ, तो मैं तुमको एक जगह पे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकता. तो हनुमान ने कहा कोई बात नहीं, आप घूमिए, मैं आपके साथ विपरीत दिशा में उड़ूंगा, बिकॉज मैं भी पवन पुत्र हूं और मैं आपसे. तो जैसे समझो सूर्य का रथ ऐसे चल रहा है तो हनुमान जी ऐसे उड़ रहे हैं उल्टा, या ऐसे अगर रथ चल रहा है तो हनुमान जी ऐसे उड़ते उड़ते जा रहे हैं. और पूरा का पूरा सूर्यदेव से उन्होंने सारे के सारे वेदों का ज्ञान ले लिया. हनुमान जी सारे वेदों के ज्ञाता है बाय द वे, और उन्होंने सब ज्ञान प्राप्त किया. और ऑब्वियसली गुरु और हमारे जो टीचर होते हैं उनसे हम ज्ञान प्राप्त करते, तो गुरु दक्षिणा उनको देना चाहिए. तो गुरु दक्षिणा देने के लिए हनुमान जी ने सूर्य देवता से कहा. तो सूर्य ने कहा कि देखो मेरा एक पुत्र है, थोड़ा सा वीक है, थोड़ा मंदबुद्धि है, तो मैं चाहता हूं कि तुम उसकी हमेशा उसका साथ देना. और वो पुत्र कौन था सूर्यदेव का? हरि बोल. कर्ण. नहीं, नॉट कर्ण अलग. क्या बोला भैया, क्या बोला? शनिदेव. शनिदेव है, पर उसकी बात नहीं किया उन्होंने, सुग्रीव की बात किया. सुग्रीव. सो सुग्रीव का उन्होंने कहा साथ देना, क्योंकि वो जानते थे कि बाली जो है वो थोड़ा क्रिपल माइंडेड पर्सन है. सो सुग्रीव का तुम ध्यान देना. और इसीलिए हनुमान जी जीवन पर्यंत सुग्रीव के साथ में रहे. I hope you know now the reason why Hanuman ji was constantly with Sugriv. So उन्होंने अपने गुरु की बात मान के और सुग्रीव के साथ उन्होंने रहे. और फिर anyway एक और चीज बताते हैं, that knowledge should not be taken as free. Knowledge has become a selling commodity today. अध्यापक भी नॉलेज ज्ञान जो उसको बेच रहे हैं, लेकिन ज्ञान बेचा नहीं जाता, ज्ञान दिया जाता है. और फिर ज्ञान ऑब्वियसली उसको रेसिप्रोकेशन भी किया जाता है. But now it has become just like a business. Education is a big business. Okay, unfortunately. So most substantial is to accept a guru. अपने जीवन में गुरु ग्रहण करना चाहिए. और उसके बाद में हमको अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. और anyway एक अलग टॉपिक है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा. लेकिन गुरु कौन है, क्या है, कैसे चयन करना चाहिए. आजकल कोई भी अपना गुरु का दुकान खोल के बैठा हुआ है, और कुछ भी अटपटांग लोग जो है वो भी अपने आप को गुरु घोषित कर देते हैं, भगवान घोषित कर देते हैं, और ऐसा होता है. एनीवे आई विल टेक द स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड, और आई विल कम टू दैट पॉइंट वेयर वी आर इन किष्किंधा. ओके, तो किष्किंधा में आप जानते हैं, जैसे मैंने एक बार रामायण का क्लास दिया था, तो आई हैड टोल्ड दैट अयोध्या इज लाइक संस्कृति, लंका इज लाइक विकृति, एंड किष्किंधा इज लाइक प्रकृति इन बिटवीन. Okay, and there are three kinds of people. One is like Ayodhya Vasi, one is like Lanka Vasi, and one is Kiष्किंधा Vasi, who are like little bit confused. So वहां पे सुग्रीव को वाली ने लात मार के भगा दिया था. तो सुग्रीव और वाली दोनों भाई थे. एक बार वाली के किसी राक्षस ने चैलेंज किया, और वाली उसके साथ युद्ध करने के लिए गया. गुफा में युद्ध होने लगा, and it took long time. Okay, and वाली did not come out, and some blood started coming out. So सुग्रीव को लगा कि वाली शायद घायल हो गया है, मर गया है. तो he covered the face of the cave and he came back thinking that Vali has actually died. But when Vali defeated this Rakshas inside, after many days he came and he saw that Sugriv has become king. So he became very angry and he threw Sugriv out and he wanted to kill Sugriv, saying that actually you wanted to, मतलब वाली ने ऐसा सोचा कि तुम मुझे धोखा देना चाहता था मूर्ख. तो सुग्रीव को उसने लात मार के भगा दिया था. और तब से सुग्रीव जो है वो एक पर्वत पे विराजमान था, और वहां पे अपने कुछ गुने चुने उसके साथ में उसके मित्र थे, सगे संबंधी थे, और उसके साथ में हनुमान जी वहां पर रहते थे. तो जब रामचंद्र जी सीता मैया को ढूंढते हुए उस इलाके से गुजरे, जब उन्होंने सबरी से भी मुलाकात कर ली, और सबरी से मुलाकात करने के बाद जब वो आगे बढ़े, और राम और लक्ष्मण जब जा रहे थे दोनों धनुर्धारी, हालांकि
वनवासी के रूप में थे, सन्यासी के रूप में थे, लेकिन धनुष बाण उन्होंने धारण किए हुए थे। तो वो जब जा रहे थे तो सुग्रीव ने ऊपर से देखा उनको कि ये कोई दो है, और उसको लगा कि शायद वाली ने किसी को मारने के लिए भेजा है मेरे पास में। तो उन्होंने हनुमान से कहा कि जाओ पता लगाओ ये दो जन कौन है, यहाँ पे क्यों आए हैं, जबकि उनको ऑब्वियसली सुग्रीव से मिलने आना था। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने अपना वेश बदला। हनुमान जी डिड नॉट गो इन द फॉर्म ऑफ हनुमान जी, ही बिकेम ए भिक्षुक सन्यासी। देखो मैं आपको बताता हूँ हनुमान जी की महानता का एक उदाहरण आपको देता हूँ, एंड प्लीज हियर वेरी वेरी केयरफुली एंड वेरी अटेंटिवली हियर दैट व्हेन रावण टुक द फॉर्म ऑफ ए सन्यासी, सन्यासी लोगों में भी कैटेगरी होती है, सो देयर इज ए भिक्षुक सन्यासी, देयर इज ए परमहंस, देयर इज ए परिव्राजकाचार्य, ऐसा सब। तो परिव्राजकाचार्य सन्यासी थोड़ा ऊंची कैटेगरी में आते हैं। तो रावण एक्चुअली टुक दैट फॉर्म ऑफ परिव्राजका सन्यासी एंड वेंट एंड अबडक्टेड सीता, सीता का हरण किया उसने। लेकिन हनुमान जी ने जब अपना वेश बदला भी ना, तो भिक्षुक सन्यासी के रूप में हनुमान जी प्रकट हुए राम के सामने टू फाइंड आउट कि राम कौन है, मतलब वो कौन है, बिकॉज हनुमान जी उनको इनिशियली उनको पहचाना नहीं, और आके और बहुत ही बुद्धिमत्ता से, बिकॉज हनुमान जी बहुत विवेक पुरुष है, बहुत पूरे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सब कुछ हनुमान जी के पास में। तो उन्होंने अपना वेश बदल के भगवान राम के पास गए टू ट्राई टू फाइंड आउट that who's Krishna. So the first mistake which he did, that when he appeared in front of the Lord, he disguised himself. And one lesson which we need to learn here is that whenever we go in front of the Lord, we should go as if we are naked. That means कोई duplicity, कोई मुखौटा, कोई फेस मार्क, कोई मास्क, कोई कवच नहीं होना चाहिए। भगवान के सामने ऐसे प्रकट होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहली गलती हनुमान जी ने वहां पर की। इसके लिए ऑब्वियसली एक और आगे कथा है कि राम थोड़े टाइम के लिए उनसे बात नहीं कर रहे थे, तो हनुमान जी वेंट टू डिस्गाइज टू फाइंड आउट हु इज लॉर्ड राम, ही कुडंट एक्चुअली रिकॉग्नाइज। और जब वो राम के पास जाके और पूछने लगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है, व्हाई हैव यू कम हियर, एंड सो मेनी थिंग्स स्टार्टेड आस्किंग। लॉर्ड रामचंद्र जी इन हिज स्मिथ स्माइल, मंद मंद मुस्काते हुए रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम बातें तो बहुत पंडिताई की कर रहे हो, और तुमने रूप भी एक भिक्षुक का धारण किया है, लेकिन ये तुम्हारे गले में क्या है? एंड एनीबडी ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट वाज देयर इन लॉ एंड हनुमान जी's neck? Why Lord Ram indicated there? So this is a very important point which I wanted to tell you. मैं बोला ना एक बाद में बताऊंगा तुमको मैं. So this was the thing. So what was in the neck of हनुमान जी? हनुमान जी के गले में एक नवलखा हार था, a real diamond माला which was invisible. ये ब्रह्मा जी ने दिया था उनको. उन्होंने कहा ये माला मैं तुमको देता हूं, और ये माला इस दुनिया में कोई भी देख नहीं पाएगा, सिर्फ वो जो तुम्हारा मालिक है वही इसको देख पाएगा. सो इनविजिबल माला जो हनुमान के गले में परमानेंट थी, जैसे परमानेंट तो कर्ण के पास कुंडल थे, कवच था, वैसे परमानेंट हनुमान के पास में ये एक माला थी, डायमंड की माला. तो वो माला को देख के राम ने कहा कि अगर तू भिक्षुक है, भिखारी है, तो नवलखा हार पहन के क्यों फिर रहा है? और हनुमान जी बेचारे पानी पानी हो गए, बोले अरे रे रे ये क्या कर दिया, ये तो मेरे प्रभु रामचंद्र है. तुरंत धाड़ करके दंडवत, डंडा मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी के समान धाड़ से हनुमान जी गिर पड़े रामचंद्र जी के पैरों में और पहचान लिया. कहा प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप मेरे इटर्नल मास्टर है, और मैं आपका इटर्नल दास हनुमान हूं. एंड हनुमान केम इन द करेक्ट फॉर्म एंड देन ही टोल्ड दैट एक्चुअली सुग्रीव के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, I will take you to सुग्रीव, आप सुग्रीव का सहायता कीजिए. Then रामचंद्र जी went along with हनुमान to सुग्रीव. सुग्रीव welcomed. अभी ना हो देखो हनुमान जी जब रामचंद्र जी से मिले, ओके, तो हनुमान जी रामचंद्र जी के चरणों में गिर गए. लेकिन जब सुग्रीव हनुमान जी से, जब रामचंद्र जी से मिले तो क्या हुआ, सुग्रीव ने क्या किया? गले लगे थे. सुग्रीव गले लगे, शेक हैंडशेक किया उनके साथ में. ओके, तो और फिर सुग्रीव ने क्या किया कि एक वृक्ष था, वहां पे दो वृक्ष पड़े थे, तो एक वृक्ष पे रामचंद्र जी को उन्होंने बैठने के लिए कहा और दूसरे वृक्ष पे सुग्रीव खुद बैठ गया. और लक्ष्मण को उन्होंने बैठने के लिए नहीं पूछा, बिकॉज उनको लगा लक्ष्मण तो ये राम का सेक्रेटरी है. तो लक्ष्मण को नहीं पूछा उन्होंने,
और ये चीज हनुमान ने नोटिस की, अरे लक्ष्मण को नहीं बोला। और लक्ष्मण कौन है? फॉर योर नॉलेज आई विल टेल यू, लक्ष्मण इज आदि गुरु, लक्ष्मण इज बलराम, लक्ष्मण is Ananta Shesh. Lakshman is the supreme personality of Godhead in servitor form. Is the supreme personality of servitor Godhead. Ram is supreme personality of, Godhead, and Lakshman is supreme personality of servant Godhead. और उसको नहीं पूछा, हनुमान जी noticed it actually. और हनुमान जी ने एक झाड़ तोड़ा और उधर रख के और लक्ष्मण जी को बिठाने के लिए कहा. And Lord Ramchandra ji noticed this. What he noticed? He noticed the sensitivity of Hanuman ji. My dear devotees, please hear very carefully. Ramchandra ji noticed the sensitivity of Hanuman ji, and this sensitivity is very, very important. Life is all about sensitivity. It is about dealings, it is about behavior, it is about words and our action. So how we speak, how we deal, what we speak, everything matters here. Sensitivity is very important. Insensitivity is about mundane life. A spiritualist is always sensitive. He speaks 100 times before he speaks one word. A spiritualist, you can make a note if you want. A spiritualist speak one word, he thinks 100 times before speaking. That is the sensitivity he has. He thinks 100 times. So sensitivity is very, very important. I will tell you one very nice story. I hope you all know about Ramanujacharya. So one time Ramanujacharya was going to one village which was owned by one very big, person and his disciple, and his name was, I don't know if anybody of you know the story and know the name of the person. Anybody? Any guess from the audience? He was a very wealthy disciple of Ramanujacharya, and his name was, no guess? Okay, his name was Yagyesh. So when Ramanujacharya was going to that village, before that he sent two of his disciples to inform Yagyesh that I am coming. Okay, so Guru told that you please go and inform that I am coming. So when these two devotees went and informed Yagyesh that Guru Maharaj is coming, and you know what happens when Guru Maharaj comes? You all know. We go and do so many things, to make arrangement for Guru Maharaj. Oh, Guru Maharaj is coming. Let us do this, let us do that. Arrangement which should be done because Guru should be worshipped as good as God. So both arrangement karne ke liye he became so happy. He said, okay, let us do like this. I will do like this. I will, make a flyer. I will, create a Zoom link. I will circulate to everybody. I will make arrangement of prasadam. I will, call all the audience. ऐसा करके बहुत कुछ बोला. And then these two devotees went back to Ramanujacharya and told her, your disciple is so happy, Guru Maharaj, Yagyesh is making so big arrangement for your program, and all those things. So if, if some ordinary person is there, he will be so happy, oh, he's making big program for me. But Ramanujacharya asked one question. You know what question Ramanujacharya asked? Any guess? Prabhu, he asked that how did he treat you guys? Very nice, Mataji. Who gave this answer? Prabhu, Priya. Priya. I expected. That's what. So he said that how did he treat you? So then they said that, oh, my dear Guru Maharaj, he was so busy making arrangement for you that actually he forgot, So Ramanujacharya actually asked, did he serve you some water? Or how did you treat you? He said he forgot. Then Ramanujacharya said, I don't want to go there. Let us cancel our program. So he cancelled. He said that this is sensitivity. You are ready to lift mountain for your Guru, and you are not ready to even serve one glass of water to the servant. Okay, and this is the greatness of a person, how he deals with a small person. So when you see this episode in the movie, Munna Bhai, don't get surprised that this Raju Hirani, is a genius. It comes from here. It comes from Ramanujacharya. Uska story leke they present it in the movie and they make big money. जैसे वो लड़की को बोलता है ना, मैं इसको पहचानूं कैसे अच्छा लड़का है, बोले वो छोटे आदमी से छुश करके बोलेगा तो उसको बोल देना आ जाओ मेरे पास, So anyway, Munna Bhai gives this answer and she is very happy. So this answer comes from our scriptures only. So whatever movie is made, be sure it is not
that some director is genius or some actor is genius. It is our scriptures which are genius, who are genius. Okay. So he cancels. So the point which I was trying to prove is that it is very, very important. Okay. How you treat a small person, that shows your greatness, our greatness. It shows that when we deal with our, therefore, these wonderful shlokas are there by our kavis. They say ke रहीमन बड़न को देख के लघु न दीजे टार, जहां काम आए सुई का करे तलवार. So the meaning of this is that Rahim Das ji is saying that when you look at the big people, don't forget the small one, because what a small needle can do, the long sword cannot. What work a needle can do, a sword cannot do. So by looking at the sword, don't throw the needle out. Respect the needle also. So that is very, very important, So he said that if you are a beggar, sorry, anyway, that episode is done. So he notices, and then he actually loves Hanumanji, and he says, this is the fit person to be my devotee life after life, actually. So also Ram, when he's discussing with Hanumanji, he actually immediately understand Hanumanji by his way of speaking, that how Hanumanji is speaking, in what way he's speaking, because when words are wrongly used, it creates a wrong impression in the mind of the people. Okay, so when we speak, we should think, then we speak. So sometimes in this world, what happens, people speak, then they think what we spoke. पहले जो मन में आया वो बोल देते हैं, हम लोग गोली चला देते हैं, बाद में सोचते कि अरे मैंने ऐसा क्यों बोला. फिर हम लोग anyway, there is no delete button here, unfortunately. 3 चीजें वापस नहीं आती है. कौन कौन सी? प्राण शरीर से एक बार छूट जाने के बाद, तीर कमान से, और बात जबान से, ये वापस नहीं आते. So we think that okay, जैसे WhatsApp में delete button है हमारे पास में, वर्ड अपने कंप्यूटर में डिलीट बटन है, वैसे यहाँ कोई डिलीट बटन नहीं है. सो वी शुड थिंक एंड देन वी शुड स्पीक. ओके, तो हनुमान जी, anyway, he made one mistake. So then later, anybody who asked Hanuman ji, who are you? Hanuman never said, I am Hanuman. Okay, this is also one important, just came to my mind, so I'm telling you. So later, after this episode, anybody who asked Hanuman, who are you? Hanuman never said, I am Hanuman. He always said, Dasoham Kaushalendrasya. He said, Dasoham Kaushalendrasya. I am the servant of the Indra of Kaushal province, which is Lord Ram. मैं राम का रामदूत, मैं रामदूत हूँ actually. Ramdas. Yes, Ramdas, Ramdut. Okay, so he is always, equates himself by the servant of the Lord. Okay, अभी टाइम भागता जा रहा है, मैं और फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा स्टोरी को भगाता हूँ. तो जब हनुमान को ये ड्यूटी मिला, कि 4 भागों में जब सेना की टुकड़ी को डिवाइड किया, और ऑब्वियसली सुग्रीव और रामचंद्र जी का दोस्ती हुआ, लेकिन तभी चातुर्मास चल रहा था. तो रामचंद्र जी ने क्या किया, पहले तो वाली को मार दिया. वो आपको सब स्टोरी पता है. तो पहले सुग्रीव और वाली का झगड़ा हुआ, वाली ने कूट कूट के सुग्रीव को वापस भेज दिया. सुग्रीव को बहुत गुस्सा आया. राम ने कहा कि माला पहनो और फिर जाओ, और जाके फिर राम ने वाली को मार दिया. तो एनीवे, वाली ने भी बहुत सारे क्वेश्चन राम से पूछे थे कि मैं वैरी सुग्रीव प्रियारा, कारण का है नाथ मोहे मारा, मुझे क्यों मारा. तो भगवान रामचंद्र जी ने बहुत सारे कारण बताए कि तू साला घिनौना आदमी है, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण कर लिया, और इस तरह से, और वानर है, आई हैव ऑल द राइट टू किल यू एंड ऑल दोस थिंग, सो दैट एपिसोड हैपेंस. एंड उसके बाद फिर सुग्रीव राजा बन गया. फिर क्या हुआ, राजा बनने के बाद सुग्रीव भूल गया कि राम की मदद करनी है. 4 महीने तक सुग्रीव भोग विलास में लगा रहा, और कोई रामचंद्र जी के पास कुछ उसकी सूद वूद नहीं ली. तो उसके बाद रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को बहुत धीरे से कहा कि लक्ष्मण जा, सुग्रीव शायद भूल गया है, उसको जाके रिमाइंड करो, उसको बोल कि जो बाण जिससे मैंने वाली को परलोक सिधारा है, the arrow which has killed Wali, that arrow is still there in my tunir.
बाय द वे लॉर्ड रामचंद्र जी की तुड़े में केवल एक बाण होता था. I don't know whether you all know or not. रामचंद्र जी had only one बाण. वो एक बाण से उनका सारा काम चलता था. तो इसलिए जब शूर्पणखा राम के पास में आई तो राम ने कहा कि एक वचन, एक पत्नी और एक बाण, ये मेरा वचन है. रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. एक बार वचन दे दिया मैंने, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी. ये किधर से आया? मैं आप लोग को याद दिला रहा हूं कि ये जो मूवी में जो सब कुछ आ रहा है ना, ये भी यहां से आ रहा है. तो भगवान रामचंद्र जी बोलते एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए. राम सिया राम जय जय राम. राम सिया राम जय जय राम. तो बोला जो बाण अभी भी मेरे पास है, गो एंड रिमाइंड. तो लक्ष्मण ने कहा भैया अभी जाके उसके प्राण ले लेता हूँ, अभी जाके उसको किल कर देता हूँ, क्योंकि लक्ष्मण इज एंग्री यंग मैन. Okay, this angry young man concept is also from our scriptures only. So he said, I am angry young man, जाके अभी मारता हूँ. राम ने कहा अरे यार मारने के लिए नहीं बोला तेरे को, you just go and just उसको थोड़ा हिला, उसको डरा. And fear is an important component in spiritual life, right? थोड़ा डर होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आदमी डरेगा नहीं तो भक्ति भी नहीं करेगा. हालांकि डर के मारे कोई भक्ति नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा फियर जरूरी है. इसीलिए ये स्वर्ग नर्क और सब कुछ है एक्चुअली, लोगों को ठीक करने के लिए. तो लक्ष्मण ने जाके सुग्रीव को रिमाइंड करवाया. सुग्रीव बेचारा दौड़ के आया, बोला अभी मैं 4 भागों में अपनी सेना को डिवाइड करता हूं, और हर एक सेना को 4 डायरेक्शन में भेज दिया. तो 3 सेना वापस आ गई. एक सेना कहां पे खड़ी थी? दक्षिण दिशा के समुद्र तट पर. तो आई एम टेकिंग यू नाउ देयर. मैं आपको उस दिशा में लेके जाता हूं जहां पे अंगद के लीडरशिप के अंदर ये सेना है, जिसमें जामवंत जी, हनुमान जी, नल, नील आदि वानर है. और वहां पे उनको एक बात पता चलती है कि सीता जो है ये समुद्र के उस पार है, लंका में. और ये जानकारी कौन देता है? यस भव्या, कौन? संपाति. वेरी नाइस, संपाति जी. ये संपाति उनको देता है. सो नाउ यस थैंक यू भव्या. So संपाति when he tells that Sita is there, अभी प्रॉब्लम ये है कि उधर तक जाएगा कौन, क्योंकि समुद्र कितना था? How big was the ocean? It was very vast. Yeah, it was 100 योजन. 100 योजन का समुद्र था. तो they started doing मंत्रणा करने लगे वो लोग कि कैसे हम लोग जाएंगे. So अंगद सबसे पूछने लगा. तो किसी वानर ने बोला कि मैं 10 योजन छलांग लगा सकता हूँ, किसी ने बोला मैं 20 लगा सकता हूँ, किसी ने बोला मैं 30 लगा सकता हूँ, किसी ने बोला मैं 50 लगा सकता हूँ, किसी ने बोला अरे मैं 70 योजन छलांग लगा सकता हूँ, लेकिन फायदा क्या, छलांग लगाऊंगा तो डूब जाऊंगा. तो अंगद ने बोला कि मैं 100 योजन छलांग तो लगा सकता हूँ, लेकिन वापस नहीं आ सकता. आई हैव स्ट्रेंथ टू डू ओनली 1 टाइम. जामवंत जी ने कहा कि जब मैं जवान था तो पूरी पृथ्वी का 21 बार भ्रमण किया था मैंने, पर अभी मेरे में वो शक्ति नहीं है, बूढ़ा हो गया हूं मैं. क्योंकि बाय द वे आपको पता है जामवंत जी रामचंद्र जी के जमाने में थे, और उसके पहले सतयुग के अंदर भी थे, और फिर वो कृष्ण के टाइम पे भी थे. तो कृष्ण का और जामवंत जी का भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ था, अगर आपको पता हो. और उससे एक पत्नी कृष्ण को प्राप्त हुई थी, उनकी पुत्री, जिसका नाम है जामवती. वो जामवंत जी की पुत्री है एक्चुअली. सो यू कैन इमेजिन जामवंत जी कितने बूढ़े थे. तो उन्होंने कहा कि मैं सब कर लेता हूँ, कौन जाएगा. सब लोग सोच रहे हैं, सब लोग खड़े हैं, हनुमान भी एक जगह पे खड़े सोच रहे हैं क्या किया जाए. तो फिर क्या होता है, फिर जामवंत जी को ये बात याद आती है. यस, जामवंत जी कहते हैं हनुमान को, और वे कहते हैं कि जाओ हनुमान, जागो, तुम्हारे में वो शक्ति है कि तुम ये समुद्र को छलांग लगा के जा भी सकते हो और वापिस आ भी सकते हो. और उनको याद दिलाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारे में बहुत शक्ति थी, लेकिन तुम बहुत शरारती थे, मस्तीखोर थे, सारी शक्ति तुम्हारी चली गई है. अब तुमको मैं रिमाइंड कराऊंगा तो वापस वो शक्ति तुम्हारे में आ जाएगी. तो हमारी सिचुएशन भी हनुमान जी की जैसी है कि भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो हमारे हृदय के अंदर है. नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए उदय. तो हमारे हार्ट में भगवान का प्रेम है, लेकिन वो प्रेम बाहर कैसे निकलेगा?
जब हम हमारे कर्णों में हरि कथा डालेंगे, हरि नाम डालेंगे, तो वो अंदर पहुंचेगा और हमारे कृष्ण प्रेम को बाहर लेके आएगा। तो जैसे गांव में कभी कभी हैंडपंप चलाते चलाते पानी नहीं आता है, तो हम एक छोटी सी बाल्टी में पानी लेते हैं और हैंडपंप के ऊपर डाल देते हैं, और फिर हैंडपंप चलाते तो फुर्र करके पानी बाहर आता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों को भी मालूम नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है। ये हमारा सब इंडियन जुगाड़ है जो काम करता है। एनीवे, इसके पीछे साइंटिफिक कारण भी हो सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। तो उसी प्रकार से जब हरि कथा, हरि नाम हमारे कान में जाता है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तव कथामृतम, वो कथा जब हमारे कान कर्ण रंध्रों के माध्यम से जब हमारे हृदय में प्रविष्ट करती है, तो हमारे हृदय को आप्लावित कर देती है, और फिर कृष्ण प्रेम जो है वो बाहर प्रकट होता है। हनुमान को याद दिलाते हैं और वे कहते हैं कि सात समंदर जान सरोवर लांघो एक छलांग जो मारो। वो कहते हैं कि अरे ये 7 समुंदर तुम्हारे लिए एक खाली छोटी सी नदी के समान है हनुमान। अरे क्या बात करते हो हनुमान, तुम्हारे में इतनी शक्ति है कि अगर तुम विचार करो तो एक छलांग के अंदर एक समुंदर नहीं 7 समुंदर पार कर दो तुम। और 7 समुंदर जान सरोवर लांघो एक छलांग जो मारो। वो कहते हैं तीन ही लोक में कोई नहीं है कपि आपको मार्ग रोकन वालो। कहते हैं कि हे कपि, हे कपि श्रेष्ठ, हे हनुमान जी, इस तीनों लोक में तुम्हारा मार्ग रोकने वाला कोई नहीं है। तुम एक छलांग मार के और 7 समुंदर पार कर सकते हो। हेरी तटे तव सिंधु सबे तव लाए सिया सुध प्राण उबारो। कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बोले अरे तुम संकट मोचन हनुमान है यार, तुम डरो मत। और फिर जामवन जी कहते हैं हनुमान को, लंका जाओ सिया सुधी लाओ, लंका जाओ सिया सुधी लाओ, केवल आस तिहारी अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। हनुमान महाबलधारी बजरंग बली उपकारी, अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलहारी। कहते अपने बल को पहचानो हनुमान, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट, प्लीज गो एंड डू इट। तो जब जामवन जी ऐसे वचन सुनाते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, जामवन ने जब अपने वचन सुनाते हैं, देन हनुमान जी he remembers everything, he regains his consciousness, everything उसको पता चलता है, he understand कि अरे ये एक समुंदर क्या है, ऐसे 100 करोड़ समुंदर को मैं पार कर सकता हूँ। और हनुमान जी जो है वो तुरंत एकदम अपना याद लेते, अपना रूप में आते हैं और जंप लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ से सुंदरकांड शुरू होता है, जिसके अंदर हनुमान 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 और हनुमान, बस उनकी चर्चा आगे बढ़ेगी, इसलिए इसको सुंदरकांड कहते हैं। लेकिन हनुमान को हनुमान किसने बनाया? जामवन जी ने। हाँ, जामवन जी इज लाइक ए प्रोजेक्ट मैनेजर, उन्होंने रिमाइंड कराया है। तो जामवन जी इज लाइक ए इनविजिबल लीडर, ही एम्पावर्स पीपल, ही एम्पावर्स एंड क्रिएट्स अ लेगेसी, और उसको आगे लेके जाते हैं। सो लीडर्स रोल इज टू क्रिएट मोर लीडर अचीवर्स लाइक हनुमान जी। सो हनुमान जी फिर जब इतना सब सुनते हैं तो हनुमान जी बहुत जोर से चिल्लाते हैं, जय श्री राम। और हनुमान जी अपने कद को बढ़ाते हैं, ही एक्चुअली बिकम्स थोड़ा अपने आप को पूरा कद बढ़ा के और बहुत बड़ा करते हैं। और हनुमान जी सोचते हैं अभी मुझे एक छलांग लगानी है, और छलांग मतलब एक अगर रॉकेट लॉन्च करना है तो एक लॉन्च पैड चाहिए। सो प्रभु, व्हाट वाज द लॉन्च पैड फॉर हनुमान जी? What was the launch pad for Hanuman ji to take? हाँ, जय श्री राम। ना जय श्री राम तो था, पर किसके ऊपर हनुमान जी खड़े रह के जंप मारी हनुमान ने? हाँ, वो पर्वत, आई डोंट नो इफ इट इज नेम महेंद्र पर्वत। महेंद्र पर्वत पे हनुमान जी चढ़ के और उन्होंने एक छलांग लगाई जोर से, जय श्री राम। आप सब मेरे साथ जोर से बोलो एक बार, जय श्री राम। जय श्री राम। हरी हरी। सो उन्होंने छलांग लगाई और फिर हनुमान जी उड़े हैं, पवन पुत्र उड़ने लगे हैं, और हनुमान जी उड़े और ऐसे राम
राम नाम के पंख लगाकर हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। हनुमान जी ने जो जंप मारी है, and this jump is the most famous long jump of Olympic ever in the history of creation, and it's a very important, very instructive jump. So I would like to spend 10 minutes on this jump part of Hanuman ji. So हनुमान जी उड़े, और जब उड़े, so जब हम भगवान के राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी जो है वो राम काज करिबे को आतुर, वो भगवान के राम काज करने के लिए बहुत आतुर है। और प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, वो ऐसा नहीं देखता अभी 9:15 बज गया है, अभी बंद करे, टाइम नहीं है, ऐसा करके ना। तो anyway, I'm just joking. So he is very very eager to hear Ram Katha, and then he actually goes. But क्या होता है कि when you take to the Krishna consciousness, Ram consciousness, spirituality, you will have some kind of obstacles, some trouble in your life. Bhakti is simple but not easy. Yeah? I had told this earlier also. Prabhupada says Krishna consciousness is simple but not easy. And not easy means difficult. It is little bit difficult, not very difficult. But तो हनुमान जी के भी रास्ते में बहुत सारी चुनौतियां आती है। तो ऑब्वियसली यू ऑल नो द स्टोरी, आई विल नॉट गो टू मच इनटू डिटेल, but I will take it as a question answer. So all our bigger regular devotee can be little quiet, and then I would like new devotees to respond if at all. So सबसे पहला obstacle, the first obstacle in front of Hanuman ji was what? क्या आया, कौन सी चुनौती आई? Demon inside the ocean. What? Inside the ocean. What Demon came out? inside the ocean. Demon came out of the ocean. Yeah, It demon is a came out. dragon demon. No. It was actually not a demon. The first obstacle which came in path of Hanumanji was not a demon. What was it? Second, third was demon. She was a lady from the sea. No ladies. It was not ladies. समुद्र देवता. समुद्र देवता नहीं. समुद्र देवता के अंदर से एक पर्वत प्रकट हुआ. One mountain. And anybody knows the name of the mountain? मेनक पर्वत. मेनक पर्वत बाहर आया, और मेनक पर्वत ने बोला कि प्लीज कम एंड स्टे, टेक सम वाटर्स, टेक सम फ्रूट्स, जूस, एंड देन यू प्रोसीड, बिकॉज योर फादर हैड हेल्प मी, आई आल्सो वांट टू हेल्प यू। तो कभी कभी हमारे लाइफ में बहुत कंफर्ट आ जाते हैं जब हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, particularly when you become leader or something like that, everyone is worshipping you, giving you too much of respect and all those things. तो आपको लगता है अरे मैं तो मठाधीश बन गया, it's okay for me, now I will not go ahead. So we should actually go ahead. So हनुमान जी ने क्या किया? He respected Menaka mountain by touching. उन्होंने सिर्फ हाथ लगाया मेनक माउंटेन को ऐसे और कहा थैंक यू वेरी मच, बट मैं भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूं और उसके लिए मैं रुक नहीं सकता, मैं वापस कभी और आपसे एसोसिएशन लूंगा और बाद में कभी आऊंगा, अभी मैं जाता हूं। और वहां से निकल पड़े हनुमान जी और आगे चले। देन व्हाट वाज द सेकंड ऑब्स्टेकल केम इन पाथ ऑफ हनुमान जी? यस श्रेया, कौन सा था? व्हाट वाज द सेकंड ऑब्स्टेकल? Shamika? No, that was third. Simhika was third. सेकंड का नाम किसी को मालूम है? प्रभु जी, एक राक्षसी थी जिनके मुंह में हनुमान जी जाके और पीछे आ गए थे। वेरी नाइस, वंडरफुल। उस राक्षसी का नाम पता है? उसका नाम था सुरसा। सुरसा। She was a lady that I was talking about. Yes, correct, perfect. You were talking, this is the same lady. So Sursa came in. तो पहला जो चैलेंज था that was complacency. So हमारे साधक के जीवन में भी ये चुनौती आती है and we have to overcome this चुनौती। मैंने इस पे एक सेपरेट क्लास दिया था 1 घंटे का, इसलिए इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। So Sursa comes and Sursa कहती है कि तुमको मेरे मुंह में घुसना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा एक वरदान दिया था कि कोई भी यहाँ से मेरे मुंह में घुसे बिना नहीं जा सकता। वो हनुमान जी बोले अरे मैया जाने दे यार, भगवान का काम करने के लिए जा रहा हूँ, बाद में कभी मुझे खा लेना। बोलते नहीं। तो हनुमान जी जाने लगे तो सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया 1 योजन का,
तो हनुमान जी ने अपने आप को 2 योजन का बना दिया। सुरसा ने 5 योजन, हनुमान जी ने 10 योजन, सुरसा ने 20 योजन, हनुमान जी ने 40 योजन, फिर सुरसा ने 80 योजन किया और फिर 100 योजन का मुंह कर दिया जितना बड़ा समुद्र था। तो हनुमान जी ने क्या किया, इमीडिएटली ही बिकेम ए वेरी स्मॉल लाइक ए मॉस्किटो, वेंट इनसाइड दैट 100 योजन का मुंह, और इसके पहले कि वो अपना मुंह बंद करे, ही एक्चुअली केम आउट। And this Sursa became very happy. She clapped and told, "You are very intelligent person, and actually I came just to test your vivek. मुझे देवताओं ने भेजा था. May you be victorious. Please go." So what Sursa represents? हमारे जीवन में सुरसा क्या रिप्रेजेंट करती है? डिजायर प्रभु जी। एक एक करके बोलो। आप अगर 2-2, 3-3 जन साथ में बोलते हो ना तो फिर सुनाई नहीं देता मुझे। जस्ट वन बाय वन। क्या बोलो, वापस बोलो। डिजायर प्रभु जी। हनुमान डिजायर, ओके ठीक है। एक बार आपने बोल दिया तो आप अपना माइक म्यूट करो, दूसरे को बोलने दो। डिजायर इज नॉट द करेक्ट आंसर। Problems. प्रॉब्लम इज नॉट। Problem. अरे ऑब्स्टेकल तो है ही है। व्हाट दिस ऑब्स्टेकल? Fulfilled her wish. हाँ, Fulfilled her wish. हाँ wish Her wish. no. What this obstacle represents in life of a devotee? हरि बोल, माया। सब कुछ माया ही है यार। चलो, नो प्रॉब्लम, आई विल गो। इट रिप्रेजेंट्स फॉल्स ईगो। सो फॉल्स ईगो बहुत बड़ा बड़ा बनता है, यू नो। So then Hanuman ji became very humble. He conquered the false ego and he came back. Then he went ahead and हनुमान जी उड़ रहे थे रॉकेट की स्पीड से, तुरंत ब्रेक लग गया। देखा कि एक राक्षसी ने उनके परछाई को पकड़ लिया है। She caught hold of the shadow of हनुमान जी and pulled हनुमान जी down. तो कभी कभी आपके जीवन में भी ऐसे राक्षसी आपको मिल जाती है कि if you are flying with the speed and some people actually catch your shadow and they actually find, you know, कौन सा तुम्हारा पार्ट है which is problematic. So it is very important when we focus, you know, unfortunately the whole world focuses on your weakness, कि तुम्हारे में सब कुछ अच्छा ही है लेकिन एक बुराई है। ये डिवोटी बहुत अच्छा है लेकिन कितना गुस्सा करता है, देखो प्रभु जी। ये डिवोटी बहुत अच्छा है लेकिन दिन भर सोते रहता है। 1000 अच्छी क्वालिटी है लेकिन एक, you know, so the example His Holiness Radhanath Maharaj gives is that example of a you know, honey bee and a fly. honey bee क्या होता है कि पूरा दुनिया भर का कचरा पड़ा रहेगा लेकिन एक फूल उस पे किसी ने डाला है तो हनी भी जाके उस फूल पे बैठेगी, उधर से वो रस निकाल के लेके आएगी। लेकिन फ्लाई, इफ यू गो टू मिरेकल गार्डन, करोड़ों फूल है लेकिन कहीं एक जगह पे गोबर पड़ा है, विष्ठा पड़ा है, वो मक्खी घूमते घूमते पूरा 1 करोड़ फ्लावर को छोड़ के उस विष्ठा पे जाके बैठेगी। सो सम पीपल आर लाइक दैट हु कैचेस योर नेगेटिविटी एंड पुल्स यू डाउन। तो उसने हनुमान को किया और हनुमान को अपने मुंह में डाल दिया। सो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? फिर हनुमान ने क्या किया? हनुमान ने फाड़ फूड़ के बाहर निकल गए सिम्मिका को। ही डिस्ट्रॉयड सिम्मिका एंड केम आउट। सो व्हाट डज दिस सिम्मिका रिप्रेजेंट्स? Bad association? Not really. Fault finding tendency? Not really. Obviously there will be so many anarthas, but I'm looking for a prominent one. This is called envy. Okay, so this is like envy, you know. So envious people will catch your negative shadow and, you know, pull you down. Okay, anyway, finally Hanuman ji goes and he enters Lanka. He reaches Lanka and then there is another immigration officer standing there. Who was that? Lankini. So हनुमान जी थिंक दैट मैं छोटा सा वानर, छोटा एक बिल्ली बन के अंदर घुस जाऊंगा, पर जैसे जा रहा था लंकिनी की आंखें बहुत तेज थी, उसने पकड़ लिया। बोला, ए किधर जा रहा है? और बोला, मेरी परमिशन के बिना जा रहा है। यू डोंट हैव वीजा, विदाउट पासपोर्ट, विदाउट वीजा, हाउ यू आर एंटरिंग? यू कैन नॉट एंटर, शो मी योर वीजा। हनुमान सेज, आई डोंट हैव वीजा बट आई नीड टू गो। सो शी सेज, नो यू कैन नॉट गो। सो हनुमान जी बहुत अनुनय विनय करते, विद वेरी ह्यूमिलिटी ही आस्क्ड। देन कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि व्हेन अ पर्सन बिकम्स हम्बल ना द अदर पर्सन बिकम्स वेरी, यू नो, बॉसी। सो लंकिनी थ्रोज हनुमान जी बिहाइंड, उसको धक्का मार के गिरा देते हैं। तब हनुमान जी को बहुत गुस्सा आता है। और एक्चुअली स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, एक प्रिंसिपल है, बट हनुमान जी उस समय आके और लंकिनी को एक चांटा लगाते, धाड़। और लंकिनी
गुलांटी मारते मारते बहुत दूर जाके गिरती है. She vomits blood and then she comes and falls at the feet of Hanuman and says, please forgive me, now you can enter. Then हनुमान से पहले समझाया, समझ में नहीं आया. इतना humility से I was trying to figure out and tell you, but you were not understanding. She said, no, I am not saying for that. Now I am remembering the boon of Brahmaji, because Brahmaji had told me to be here as a door guard. And when I told that when my duty hours will be over, so Brahmaji said, one monkey will come and he will hit you. That will be the end of Lanka. That will be start of the end of Lanka. So he said, you please enter. Then Hanumanji enters. And what this Lankini represents in life of a devotee? What does it represent? The past karmas. Not really. It represents obstacle faced in preaching. When a devotee is trying to preach, he is being stopped by so many people and they are not allowed. Like Prabhupada said, when I came to America, okay, they were actually not allowing me at many places. In some countries, they were not allowing me. Who are you? From where you have come? Why you have come? Indeed, एक बार जब मैं इंडिया गया था, तो दिल्ली में कहीं पे the immigration officer asking me, आप क्यों आए? मैंने कहा मेरा देश है यार, क्यों आए? क्या नहीं, आप मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप तो बॉम्बे में रहते हो, आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? भुवनेश्वर में क्या कर रहे हैं? मैं रथ यात्रा अटेंड करने आया, इधर जाने के लिए आया. मतलब समटाइम ऐसे क्वेश्चन पूछने की आदत होती है, तो कुछ भी पूछते, क्यों आए हो तुम, क्या करने आए हो, ऐसा करके. एंड बाय द वे, Prabhupada is the true follower of Hanuman. As Hanumanji jumped the ocean and crossed the ocean, our Srila Prabhupada also jumped and crossed the ocean. और 7 समुंदर पार करके हनुमान जी की तरह श्रीला प्रभुपाद जी ने छलांग लगाई और अमेरिका में जाके प्रचार किया. एनीवे, श्रीला प्रभुपाद वाज सेइंग कि मैं जब जाता हूं तो लोग बहुत पूछते हैं, प्रचार करने नहीं देते हैं. समटाइम देयर इज सो मच ऑफ ऑब्स्टेकल, सो मच ऑफ डिफिकल्टीज क्रिएटेड फॉर प्रीचिंग. इधर भी हम लोग का कभी कभी नेबर लोग सताते हैं, इतना ज्यादा मृदंग क्यों बजा रहे हो, इतना ज्यादा आवाज क्यों कर रहे हो, ये शोर क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. कभी कभी घर वाले तकलीफ देते हैं, कभी क्या होता है, सो मेनी ऑब्स्टेकल यू फेस. बट इतना सब ऑब्स्टेकल को देख के भी श्रीला प्रभुपाद ने जो चमत्कार कर दिया, nobody on this earth has done. श्रीला प्रभुपाद की जय, जय श्री हनुमान जी की जय. So Hanuman ji, anyway, he reaches Lanka ultimately and he is flying from above. Rameshwar Kanai Prabhu, today is holiday, tomorrow is also holiday. So if you permit me, can I take 10 minutes extra? I have already taken so much extra time, but no problem, Prabhuji, no problem. If you permit, I'll. If anyone is in a hurry, they can log out and go. Obviously, yeah, those who are interested, please stay. Yeah. So I wanted to actually little bit conclude on Hanumanji's one or two aspect. So Hanumanji is flying on Lanka and he's trying to search everywhere. Where is Sita? Where is Sita? Where is Sita? So he goes, sees Ravan's palace and all those things, and then he's flying and he hears this name, Ram, 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 Ram. He looks down and he sees that there is Tulsi Maharani and there is a small hut. So he thinks, oh my God, इधर तुलसी महारानी किधर से, राम का नाम किधर से आ रहा है, रावण की लंका में ये कौन है, भक्त कौन है. So he again changes his form to find out who that person is, and then obviously it is Vibhishan, and Vibhishan also recognizes Hanuman. Both of them meet and Vibhishan actually tells Hanumanji where Sita is. So Vibhishan says that Sita is in Ashok Vatika. You please go to Ashok Vatika, you will find Sita there. So it is, so then Hanumanji says that you don't fear, तुमको डर नहीं लगता है, तुम रावण की लंका में राम का नाम लेते हो. So Vibhishan says that as the tongue is inside and surrounded by the sharp teeth, I am also living in the same way in the Lanka of Ravan, but it is all mercy of Lord Ram, that because of Lord Ram I am safe. So मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, जाके राखो साइया मार सके ना कोई. So he says Ram is protecting me. But one time one of the Chugalkhor, he goes and complains to Ravan saying that look at your brother is such a nasty fellow that he has written Lord Ram's name on his house. तो हम लोग अपने घर पे लिखते ना, तो बोला कि पूरी कुटिया के अंदर उसने राम राम का नाम लिखा. Ravan becomes very very angry.
he takes out his Chandrahas sword and he says, आज बस विभीषण का खात्मा कर दूंगा मैं. और वो Chandrahas sword लेके, and Ravan goes to Vibhishan and he says, मूर्ख, नादान बालक, मेरे दुश्मन का, मेरे शत्रु का नाम लिखता है, आज तेरी खैर नहीं, आज मैं तुझे मार दूंगा. And as he is trying to attack, Vibhishan stops him. And obviously कृष्ण भक्त, राम भक्त बड़ो चतुर. तो विभीषण क्या बोलते हैं? बोलते भैया रुको रुको रुको, ये आप क्या कर रहे हो? अपने छोटे भाई का वध कर रहे हो? पहले पता तो लगाओ कि मैंने क्या लिखा है. तो कहे कि अरे मैं, हमारे पिताश्री नहीं है, आप मेरे बड़े भाई है और आपने मुझे पुत्र की तरह पाला है, तो आप मेरे लिए पिता समान है. और भाभी, वो मेरे लिए माँ समान है, तो मैंने ये आपका और भाभी का नाम लिखा है. तो राम मेरा नाम कैसे हुआ? तो बोले नहीं, ये राम के अंदर जो रा है वो है रावण, और म है वो है मंडोदरी. तो कहा ये रा जो है वो रावण है और म है वो मंडोदरी है, तो मैंने रावण मंडोदरी रावण मंडोदरी रावण मंडोदरी लिखा है. तो रावण ने कहा अच्छा, बहुत कम लिखा है, और ज्यादा लिखो. और वो मूर्ख वहां से चला गया. एनीवे, सो दिस वाज सम अदर पास्ट टाइम ऑफ सो राम भक्त बहुत चतुर होते हैं. तो अपने आप को तो ऐसा कहा भी गया शास्त्रों में कि जब तुम्हारे जान पे आता है ना, तो बचाने के लिए यू मे ऑल्सो टेक लिटिल शेल्टर ऑफ डिप्लोमेसी, बट इट शुड नॉट बी, इट शुड बी लिटिल बिट फेयर एक्चुअली. सो तजेत देखम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत. ये चाणक्य पंडित ने कहा है. इट्स अ वेरी वंडरफुल श्लोका where he says त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत. By any chance anybody understand what I said? कभी आपने सुना है ये श्लोक पहले? इसका मीनिंग पता है? Obviously I don't expect it was in Sanskrit, but the meaning is कि एक गांव को बचाने के लिए नहीं, पहले तो एक परिवार को बचाने के लिए परिवार के एक सदस्य का त्याग किया जा सकता है. एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार का त्याग किया जा सकता है. एक देश को बचाने के लिए एक गांव का त्याग किया जा सकता है, और अपनी आत्मा को बचाने के लिए पूरी दुनिया का त्याग कर दिया जा सकता है. त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत. ये चाणक्य पंडित कहते हैं. दिस इज अ वेरी वंडरफुल थिंग एक्चुअली. Can you say that in English too? Okay, English I will say. The English it is like this: to protect a family, one member of family can be sacrificed. To protect a village, one family of the village can be sacrificed. To protect a nation, to protect a country, one village can be sacrificed. And to protect our own soul, the whole world can be sacrificed. So, इसके लिए अगर अपनी आत्मा को बचाना है तो किसी का भी त्याग कर सकते हैं. ये चाणक्य पंडित ने कहा है. So anyway, so हनुमान जी went ultimately, he saw सीता माता, but immediately he didn't approach सीता माता. उन्होंने सोचा कि सीता को ऐसा लगेगा कि मैं भी रावण का भेजा हुआ कोई बंदा हूं. So हनुमान जी ने क्या किया? Anybody can tell me what Hanuman ji did after reaching there? Obviously, other than what he, उन्होंने राक्षसों को मारा, फल खाए, वो सब नहीं सुनना है मुझे. Please tell me what happened when started reciting Rama Katha. Very nice, wonderful. So he started reciting Ram Katha. तो राम कथा के माध्यम से उन्होंने पहले सीता को राम कथा सुनाई. जब सीता ने राम कथा सुनी तब उन्होंने सोचा कि कौन है. फिर हनुमान जी जंप मार के सीता के पास गए और रामचंद्र जी को उनकी अंगूठी जो थी वो सीता माता को दी. प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांधी गए अचरज नाही. हाँ, तुलसीदास जी लिखते हैं कह रहे हनुमान जी ने ये 100 योजन का जो समुद्र पार किया, उसमें हनुमान जी की कोई इतनी ज्यादा योग्यता नहीं है. वो योग्यता उस मुद्रिका की है. क्या? दैट रिंग. The power of the ring is so much that when Hanuman ji put that ring inside his mouth, here in his throat, he could cross over. So Prabhu Mudrika Meli Mukhmahi जलधि लांधी गए अचरज नहीं. अरे कोई अचरज की बात नहीं है. उन्होंने पूरा समुद्र पार कर दिया. तो वो उन्होंने दिया और तब राम सीता को समझ में आया. फिर हनुमान ने कहा सीता मैया तुम मेरे पीठ पे बैठो, मैं तुमको अभी राम के पास लेके जाता हूँ. सीता ने कहा मैं ऐसे नहीं जाना चाहती. मैं चाहती हूँ कि रावण को दंड मिले, तो मेरे प्रभु रामचंद्र जी को बुलाओ. एंड देन ऑब्वियसली हनुमान जी जाते हैं, रावण से मिलते हैं. पहले तो ऑब्वियसली युद्ध होता है. फिर रावण के एक पुत्र अक्षय कुमार को मार देते हैं वो. उसके बाद मेघनाथ आके उनको पकड़ लेता है. फिर रावण के सामने जाते हैं, हनुमान की पूंछ में आग लग जाती है. हनुमान जी लंका जला के फिर वापस राम के पास जाते हैं. और फिर राम के पास जब उड़ते उड़ते जाते हैं तो राम उधर
देख रहे हैं हनुमान जी को, सब लोग आके मैसेज देते हैं कि हनुमान जी अभी आने वाले, बताने वाले हैं, और रामचंद्र जी पूछते हैं तो हनुमान जी जाके तुरंत सोचते हैं कि मैं राम को बोलता हूं कि सीता मिल गई, सीता मिल गई मुझे। तो फिर उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं जाके तुरंत बोलूंगा सीता, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से, और आपको अगर वो, जैसे अभी पहले टेलीग्राम आता था हमारे गांव में और ऐसे होता, तो टेलीग्राम में ऐसा एक मैसेज आता था, फादर सीरियस कम सून, इतना आता था टेलीग्राम में, 4 वर्ड लिखे होते थे, तो समझ जाते थे कि कुछ अर्जेंट जाना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बोलूंगा सीता, तो राम को लगेगा अरे सीता के साथ कोई दुर्घटना हो गई क्या। You see the sensitivity of हनुमान जी. Please listen very carefully. हनुमान जी saying that if I tell सीता मिल गई मुझे, तो राम को लगेगा अरे सीता के साथ कोई दुर्घटना हो गई, कहीं वो मूर्छित नहीं हो जाए। एक्चुअली राम तो मूर्छित होने वाले नहीं थे, लेकिन हनुमान जी सोच रहे हैं ऐसा कि कहीं मूर्छित नहीं हो जाए, तो बोले सीता का नाम पहले मैं नहीं लूंगा, तो मैं बोलता हूँ मुझे सीता मिली। देन ही थिंक्स, बिकॉज हनुमान जी इज वेरी सेंसिटिव, ही थिंक्स कि मुझे सीता मिली, अगर ऐसा बोलूंगा इसका मतलब आई एम गिविंग इंपॉर्टेंस टू माई सेल्फ, कि मैंने सीता को ढूंढा है। This is also not good. So let me tell, मिली सीता मुझे। So ग्रामर की दृष्टि से गलत है, that found सीता by me. This is not English. English grammar is I found Sita, Sita was found by me. That is fine. But he says found Sita me, whatever it is actually. So because he is very sensitive, he goes and tells Ram, and then Ram says, I cannot repay you, I can only embrace you. So then he actually embraces Hanumanji and gives his blessing. And then obviously हनुमान जी की बहुत सारी और भी कथाएं हैं कि उसके बाद फिर जब हनुमान जी, जब विभीषण वहां से आता है राम के पास मिलने, सब लोग ना बोलते हैं, ओनली हनुमान जी से कि विभीषण को मैं जानता हूँ, ही इज योर डिवोटी, प्लीज एक्सेप्ट। एंड देयर रामचंद्र जी से दिस फेमस वर्स कि सकृत यत् प्रपन्नम में, कि एक बार कोई भी अगर मुझे बोल देता आई एम योर्स, देन खलास, देन वो मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूँ। तो जैसे ही विभीषण आके उनके चरणों में गिरता है, राम बोलते उठो लंकेश, उठो लंकेश, मतलब he declares Vibhishan as the king of Lanka. So somebody asked Ram, अरे लंकेश तो अभी रावण है, तुमने इसको लंकेश कैसे बोल दिया? तो बोला नहीं, इसको बोल दिया लंकेश मैंने, तो ये लंकेश बन जाएगा। तो बोला अगर समझो कल को रावण आके if he surrenders unto you and he falls at your feet, so you have given Lanka to Vibhishan, okay, then what will you give to Ravan? Then Ram says, I will give Ayodhya. He says, if Ravan comes to me, I will give Ayodhya to Ravan because I have already given Lanka to Vibhishan. Then somebody goes one step further and asks Ram, but that Ayodhya is with Bharat. So what will you give to Bharat? He says, Vaikuntha काय के लिए है? I will give Vaikuntha to Bharat. So this is Lord Ram. Jai Shri Ram. So anyway, Hanuman ji के बोलने पे he accepts Vibhishan. And then, when the bridge is made, Hanuman ji throws big boulder, and then he goes there, युद्ध होता है, लक्ष्मण को शक्ति लगती है, उसके अंदर भी हनुमान जी आते हैं और लक्ष्मण की जान बचाते हैं, और लक्ष्मण को वापस से संजीवनी के द्वारा उसको जीवित कर देते हैं। और इस तरह से हनुमान जी का कंट्रीब्यूशन बहुत है। हनुमान जी actually does very thing. Only one small pastime of 1 minute I will tell and I will conclude. So सब कुछ हो जाता है, रामचंद्र जी जीत जाते हैं, रावण का वध हो जाता है, राज्याभिषेक होता है, पट्टाभिषेकम जिसको आप मलयालम में बोलते हैं, तो पट्टाभिषेकम ऑफ लॉर्ड रामचंद्र जी इज डन, he is coronated as king, Sita Mata is queen, everything is fine, Ram Darbar is set, everything is there, everyone comes and gives gift to Lord Ramchandra ji. So one very big merchant comes and gives one Navalakha har to Ramchandra ji, and Ramchandra ji gives us that har to his beloved Sita Mata, and Sita Mata ko dete hain. Then Sita Mata gives this har to Hanuman ji, okay, and says that you have done a lot for us, actually you deserve this, please take this. And that Navalakha har Hanuman ji takes, puts in the mouth and breaks both his teeth, कड़क तोड़ता है और वो मोती को फेंक देता है, दूसरा हीरा तोड़ के फेंक देता है, हीरे मोती माणक सब तोड़ ताड़ के फेंकते हैं। So this merchant becomes very offended, saying that अरे इतना अच्छा हार दिया, एक तो राम को दिया, राम ने सीता को दिया, सीता ने इस बंदर को दे दिया, और ये जो हनुमान जी ऐसा ऐसा कर रहे हैं करके, he becomes very bad. So then he says that what are you doing? He says no, I am looking for Lord Ram and Sita in this गार्लैंड। ये इसमें हीरे मोती में मैं राम देख रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहे तो मेरे किस काम का।
तो जो नहीं है राम का वो मेरे किस काम का, फेंक देता है ऐसा करके. So this merchant becomes very angry and he says, you are saying as if Lord Ram is there with you in your heart. And Hanumanji says yes. And at that time Hanumanji tear opens his chest और अपना छाती फाड़ के, और क्या होता है उसमें राम और सीता का दर्शन होता है. तो एक राम सीता इधर सिंहासन पर विराजमान है और एक राम सीता हनुमान के हृदय के अंदर है. बोलो जय श्री हनुमान जी की जय. जय श्री रामचंद्र भगवान की जय. हरे कृष्णा. सो आई विल स्टॉप हियर बिकॉज टाइम बहुत हो गया. मैंने 10 मिनट मांगा था, 10 मिनट मैंने यूटिलाइज कर दिया है. थैंक यू वेरी मच. देयर आर मेनी नाइस पास्ट टाइम्स ऑफ हनुमान जी स्टिल. बहुत सारे हैं, आप लोगों को मुझसे और भी ज्यादा पता रहेंगे, but this is what we can discuss in the limited time. So I have tried whatever I could and whatever came to my mind. So if there is any mistake, any shortcoming in this presentation, please forgive me, and also please pray for me that I can get some mercy of Lord Hanuman ji and Lord Ramchandra ji. And obviously let us all pray for the devotees who are affected by COVID and the situation. Also my mother was not well, in the sense thoda kuch tha, तो अभी ठीक है. So please pray for her also and pray for all the devotees. Thank you very much. So I will stop here with your permission. Sorry for taking extra time. Sorry for making you bore, if at all I made, and sorry if I would have spoken anything which is not appropriate or beyond my capacity or beyond my realization. Kindly forgive me for that. Thank you very much. Once again, let us chant Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Hanuman. Jai Hanuman. Jai Srila Prabhupada ki. Hare Krishna Prabhuji, if you don't mind, please can I ask a question? Just I have a small doubt, Prabhuji. It will not take much time. Yes, Prabhuji, I can go ahead. Okay. सॉरी प्रभुजी. प्रभुजी आपने रामानुजाचार्य के बारे में बताया और 2 डिसाइपल्स जब यागेश के इस पे गए थे तो उन्होंने, यागेश ने बहुत सारा अरेंजमेंट किया था रामानुजाचार्य जब आने वाले करके. लेकिन प्रभुजी मेरे को ये समझ में नहीं आई बात, यदि किसी डिवोटी का, इवन वो रिच हो या गरीब हो, उसने तो उसका पूरा अरेंजमेंट किया था, उसने पूरा एकदम उसके बॉटम ऑफ हार्ट उसने सब कुछ अरेंजमेंट किया था सभी. क्यों नहीं गए? हाँ नहीं, एग्जैक्टली मेरे को ये बात समझनी है कि सपोज उसको कुछ पता होता कि ये 2 डिसाइपल्स आए हुए हैं तो ऑब्वियसली वो कर देते उसके. नहीं, पता था कुछ कर मुझे, पता था. वो 2 डिसाइपल नहीं आके यज्ञेश को बोला ना कि गुरु महाराज आ रहे हैं. आपने हरि बोल. Sorry Prabhuji, that I did not understand. These 2 disciples only came and told him that your guru is coming, and he forgot. So obviously the point is every leela has some lesson. Okay. Yes. तो उस lesson को सिखाने के लिए ये लीला है. But that 2 devotees only told Yagyesh that guru आ रहे हैं, and he forgot. And actually वो 2 devotee ने बुरा भी नहीं माना. It was Ramanujacharya who took it as to teach others. So these 2 devotees didn't take any offense. उनको ऐसा भी नहीं लगा कि अरे हमको पानी तक नहीं पूछा. They were normal. Yeah, they were normal. I hope this answers your question. Yes, Prabhuji, sure. Just मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि उनको पता नहीं होगा, इसलिए मेरे को लगा कि ऑलरेडी उन्होंने तो बताया तो नो प्रॉब्लम. Okay, no problem, Prabhuji. I think so. So he only came. So he said that I don't want to go because if there is, like for example, English there is a saying na, love me, love my dog. So Krishna says कि मेरी भक्ति मत करो, मेरे भक्त की भक्ति करो. आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम. उसके अंदर वो बोलते हैं कि समर्चनम तदीया नाम समर्दर्चनम, कि भाई भगवान से बड़ा भगवान का भक्त है, उसकी पूजा करो. और उस मतलब भगवान का पेरिफेर नहीं लिया, भगवान के भक्त जो है ना, तो ऐसे ही कहते हैं ना, कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों से मैं इतना प्रेम करता हूं कि जहां जहां मेरे भक्त पांव धरे वहां धरूं मैं हाथ. So wherever my devotees are stepping their feet, I step my hand so that they can keep their feet on my hand. कि जहां जहां मेरे भक्त पांव धरे वहां धरूं मैं हाथ, आगे पीछे डोलू उनके कभी ना छोड़ू साथ. So this is what Krishna is. He loves his devotees like anything. Okay, thank you. Any other question or comment? Hare Krishna Prabhuji, Dandavatanam. So wonderful, Prabhu. The enthusiasm in narrating the Hanuman's pastime is no wonder, because you are a blessed. I don't know how many of the participants know that you are a very blessed
devotee of Lord Hanuman, because he allowed you to take Janma on the same day as he is. That is Hanumanji's mercy. That's what I'm saying. He will not give this mercy to everyone, Prabhuji. Only to his beloved devotees he gave it. So that's the reason you are speaking with all guns. So it's our good fortune to get your association and hear from this one. Actually, for me, I will sit and hear for hours. Such a amazing class, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for your kind words. Bhavya, you want to show me something? Show me. I am spotting you. Wow. दिखाओ. Wow. ये रामचंद्र जी धनुष तोड़ रहे हैं, हाँ? सीता स्वयंवर. Very nice. Wonderful, Bhavya. Well done. Very nice. Keep it up. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक छोटा सा सवाल है जिसमें माइंड में आया। जैसे विभीषण जो है वो भक्त है, और उन्होंने सरेंडर किया और धर्म का साथ लिया, सब कुछ किया, बट आज के कलयुग में ऐसा बोला जाता है कि घर का बेदी डंका लाया, और विभीषण का एग्जाम्पल लिया जाता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से मतलब समझना चाहिए प्रभु जी? एक्चुअली में रॉन्ग कोटिंग होता है ना? रॉन्ग कोटिंग है। एक्चुअली क्या है मालूम है, कलयुग इज फुल ऑफ डुअलिटी, एंड जहां पर आग है वहां पर धुआं भी है, जहां पर धूप है वहां पे छांव है। वो खाली पिक्चर में होता है कि हेड होता है और टेल नहीं होता है, अदरवाइज सिक्के में हेड और टेल दोनों होते हैं। ब्रिज प्रभु मुस्कुरा रहे होंगे, उनको समझ में आ गया मैंने क्या बोला। सो वो खाली पिक्चरों में होता है कि हेड है और टेल नहीं है सिक्के में, otherwise there is a head and there is a tail also. So everything actually, so people, what you want to take, so whether you want to become the honey bee or you want to become a fly, it's up to you. घर का भेदी लंका ढाए ये बोलना है, या कि भाई धर्म के लिए उसने अपने भाई को भी छोड़ दिया। तजे देखम कुलस्यार्थे ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। ओके, सो हाउ यू टेक इट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ यू आर। सो अदरवाइज दुनिया तो है कि तुम जो भी करोगे दुनिया तुमको उल्टा सीधा बोलने वाली है। अच्छा करोगे तो भी बोलेगा। वो एग्जांपल है ना कि अगर तुम समझो रास्ते में चल रहे हो और सिर उठा के चलोगे तो लोग बोलेंगे कितना घमंडी है साला, सिर उठा के चल रहा है। सिर झुका के चलोगे तो लोग बोलेंगे जरूर कुछ गलत काम किया रहेगा, इसके लिए ऐसा चल रहा है। आंख मिला के चलोगे तो बोलोगे देखो ये आंख मिलाते मिलाते चलता है। आंख फोड़ दोगे तो लोग कहोगे देखो अपने कर्मों का फल इसने भोगा, कुछ गलत जरूर किया रहेगा इसलिए सब आंख फूट गई इसकी। कुछ भी करो। अच्छा, यू नो दैट स्टोरी ऑफ डोंकी एंड द सन एंड द फादर, दैट गिव्स आंसर, कि वो लोग बेचारे चल रहे थे, एक गधे पे दोनों जन बैठे थे। लोगों ने बोला देखो एक छोटे से गधे पे 2 लोग बैठे हैं, तो दोनों उतर गए। तो बोले कितने मूर्ख है, तो फिर उसने बेटे को बिठा दिया, तो बोला देखो बेटा कितना मूर्ख है, अपने बाप को चला रहा है, खुद गधे पे बैठा है। तो बेचारा बेटा उतर गया, बाप बैठा। तो बाप कितना मूर्ख है, छोटा बच्चा है को बिठा नहीं रहा है, खुद बैठ रहा है। पागल हो गए वो लोग। फिर उन्होंने गधे को अपने ऊपर उठा लिया। दुनिया बोली इनसे बड़ा मूर्ख कौन होगा, चलने के लिए गधा भगवान ने दिया, गधे को सर पे लेके चल रहा है। तो मतलब दुनिया ऐसी ही है भाई। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इनकी बातों में, इनमें नहीं रहना, अपने को अपना जय श्री राम करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, आई होप दिस गिव्स आंसर। Krishna says that all other dharmas sarva dharman parityaja. Yes. Definitely, you leave everything and surrender unto Lord. Thank you so much, Prabhuji. Okay. Any other comments or questions? Otherwise, it is too late for Prabhu. It is 9:15. Shall we end the session? Yes, Prabhuji. So thank you everyone for your patience listening and tolerating me. Definitely. So thank you. Kalyani Mataji is saying something. Thank you, Prabhu. Wonderful lecture. We received so many instructions from this lecture. Thank you so much. Again, I want to the continuation of this lecture. This Milisita, you said no, Prabhu. That is in Kamba Ramayana also same. I don't know. Valmiki Ramayana it says like this. Kamba Ramayana for sure it says this. Contain Sita. First he says I saw. Then he says that it's grammatically it's wrong. Then. And one more thing, Prabhu, can I in Kamba Ramayana one beautiful please. Kamba Ramayana this when Valmiki then Hanuman when he met Sita,
he was thinking how to present this one, because she will be always skeptical. That is the arrangement of Ravan maybe. And finally, if he starts Sanskrit also, she will be wondering why this monkey is speaking like this. So he started speaking Ram Katha from the Ayodhya, everything. She was enjoying. And suddenly he stopped where whatever the level she knows. Then he made the eagerness of her hearing. Then she looked up. And then now at this point, he started introducing him who he is. Because until then he knows, she knows. So that she was so wonderfully, because before if he introduced, she will not understand, she will not accept. So the Valmiki, as a compromise, says that very nicely, bro. And then he stopped and he is not talking. Then she looks at who you are talking like that. Then he introduced himself. I am the servant of Lord Ram, like that. Then she accepted. Very nice. All our acharyas so great, Prabhuji. Yeah. Thank you for telling me. Hare Krishna. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरि बोल। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। We can complete. Gaudiya Vaishnava. Jai.